Hello, everyone, and welcome to another session of Gravy on Narratives. In keeping with our commitment to bring you nuanced discussions on global issues, we turn our attention today to the Afghan refugee crisis in Pakistan. For decades, the plight of Afghan refugees has been a pressing issue, but recent developments have brought it back to the forefront. We'll be talking about the current situation of Afghan refugees in Pakistan, their living conditions, the difficulty they face, and the reasons of their displacement. We'll also look into at Pakistan's deportation policy toward Afghan refugees, why this policy exists, how it's implemented, and how it affects refugees. This is an important aspect of the debate because it directly affects the life of millions of Afghans. A significant portion of our discussion will be devoted to comprehending the Pakistani public's reaction to the expulsion of Afghan refugees. We look at public opinion, how the media is covering the situation, and the role of civil society in this crisis. I'm going to give a little overview of the topic. Iran and Pakistan have collectively forced out more than 500,000 Afghans over the past 2 months, with the number of deportees growing by the day. Of the 1.7 million Afghans Pakistan hosted, more than half a million people fled Afghanistan in August 2021. Most of them also fled during the 1979 to 1989 Soviet War. Others came to Pakistan to escape Taliban rule during its takeover of power from 1996 to 2001. According to the International Organization of Migration, nearly 375,000 Afghans returned home from Pakistan through the Torkham and Speen Boldak border, crossing between the two countries. De facto Afghan Taliban authorities have reported more than 400,000 returnees. The IOM statement noted that the number of border crossing dramatically increased from 200 daily to 17,000 after the Pakistani government ordered all undocumented foreigners, including an estimated 1.7 million Afghan, to leave the country by November 1st or face forcible expulsion. Official Pakistani data show that Afghan who have returned or are in the process of returning are doing so voluntarily, and only 16% of them were deported. The Taliban government in Afghanistan has publicly denounced the eviction and sought their reversal. Islamabad has rejected the criticism, saying the crackdown is targeting foreigners who are residing illegally or overstaying their visas. Philippa Candler, representative of the UN High Commissioner of Refugees, UNHCR in Pakistan, said that mass arrival are adding to the ongoing humanitarian crisis in Afghanistan, where winter temperatures are already dipping to -4 centigrade in some locations. A fine of $830 on each person as a fee for arriving without a proper visa have been implemented. Pakistan's decision to impose this exit fees for every Afghan refugee who fled the persecution by the Taliban has been condemned as shocking and frustrating by Western diplomats and the UN. The move targets refugees who are waiting to leave Pakistan for Western countries under resettlement schemes. The US government planned to resettle almost 25,000 Afghans in the country. The UK has said it will resettle 20,000 people. Pakistani authorities have also stopped hundreds of Afghan-bound containers under transit trade at Karachi port to curb smuggling and ensure proper taxation. This has caused losses of millions of dollars to Afghan traders. The authorities refused to clear the item banned by the Commerce Ministry. This is the initial introduction of the topic. We have some of our usual hosts and also some guests. Some of them they are new, some are old ones. Now I'll go to Shaji to move the topic forward. Okay, thank you very much. First of all, I will like to just begin by the first segment, which I think is essential. So there are approximately 1.7 million estimated registered Afghans or people of Afghan descent within Pakistan. Some of them have been here for 2 generations. Some people are second generation, third generation, and you have a few from the first generation of Afghans as well. The first question, which might be interesting to look at, is why now? Why has Pakistan decided all of a sudden that in the current situation, it wasn't an issue for a long period of time? Why has Pakistan suddenly decided that the Afghan refugees or people of Afghan origin should be
sent back to Afghanistan. I think that is a very imperative thing to look at in detail. So I'll move to the first guest, Ali Shabir Bhai. I hope you're fine and well. If I'm audible, please unmute yourself. What's your opinion? आपको क्या लगता है कि अभी क्यों ये डिसीजन आया और इसकी क्या सपोर्ट है पाकिस्तानी लोगों के अंदर? देखिए शुक्रिया। पहले तो मैं आई रियली वांटेड टू थैंक मेरूसा फॉर इनवाइटिंग मी। शाजी, थैंक यू फॉर एवरीवन एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस पैनल। देखें, आइडिया ये है कि पहली बात पहले, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। आपके दूसरे पैनलिस्ट उसमें ऐड करेंगे। देखें, सबसे पहले कोई काम किस लिए होता है वो चीज़ अक्सर बाद में आ जाती है, किस तरह किया जाए वो बड़ा अहम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कौन से तरीके से क्या काम करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस तरह इस चीज़ को हैंडल किया जा रहा है, मैं हमेशा इसको समझता हूँ कि जो हमारे अफ़गान बहन-भाई हैं, या मिसाल के तौर पे किसी भी जगह पे कोई भी जो रिफ्यूजी की क्राइसिस होता है या इमिग्रेशन होता है, तो या माइग्रेंट्स आते हैं या जाते हैं, तो उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो केयर है, वो जितनी की जाए कम होती है। और जैसे हमारे वो शाहजी, हमारी एक पंजाबी की एक एग्ज़ाम्पल भी है। इट्स नॉट वेरी मतलब अप्रोप्रिएट, बट आई हैव टू शेयर कि गंजी ने नहाना की है तो निचोड़ना की है, ठीक है? जिस बंदे के पास जितने रिसोर्सेज़ हैं, हम देखते हैं कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में अगर किसी आम मुल्ज़िम को भी उन्होंने पकड़ना है, तो पोस्ट पे उसको पकड़ा है, तो उसको बाइक पे बिठाया हुआ है। पानी मिनरल तो दूर की बात, वो सादा नलके का पानी उसको मिलना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हैंडल करने इतने इतने बड़े डिसीजन, फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं कंक्लूड करूंगा शाह जी, कि आप देखते हैं कि वेस्ट में अभी ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान से, इंडिया से और पाकिस्तान से बड़े लोग ऑस्ट्रेलिया और दूसरे वेस्ट में जा रहे हैं स्टूडेंट्स बन के दूसरे मामलात करने के लिए। तो आप देखें कि वहाँ अगर एक स्टूडेंट जो प्रॉपर इमिग्रेंट बन के भी नहीं जाता, सिर्फ वहाँ मूव होता है अपनी सो कॉल स्टडीज़ के लिए और अपने मतलब रोज़गार के लिए, तो वो कितनी कॉस्ट खर्च करके जाता है। लाखों रुपए पाकिस्तानी या इंडियंस में, इंडियन करेंसी में खर्च करके वहाँ जाते हैं वो लोग। तो कंक्लूड मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे बहन भाई जो पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं है कि उनको फ्री में इतने सालों से रखा हुआ है, और वो बोझ तो पड़ रहा था। लेकिन इस टाइमिंग की ये वजह हुई है कि जो हालात बॉर्डर पे बनते जा रहे थे, और जो काबुल फॉल हुआ है, और जहाँ से मिसाल के तौर पे हमारे जो हमसाये नेबर की जो पॉलिसीज़ या उसका भी एग्ज़िट वहाँ से हुआ है। तो फिर उस इन दोनों सिनेरियोज़ में ये तो अल्टीमेटली होना ही था। और अगर पाकिस्तान को पैसे बचाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है और राइट्स पाकिस्तान अच्छी तरह नहीं निभा सकता इमिग्रेंट्स को भेजने के लिए, तो ये बहुत मतलब दुःख वाली बात है। तो मेरा दिल तो हर उस मज़लूम और हर उस परेशान इमिग्रेंट के साथ है, जिसको मिसहैंडल किया जा रहा है, और वो सही तरीके से इज़्ज़त और डिग्निटी के साथ जा नहीं पा रहा, या उसको यहाँ होना चाहिए और उसको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। तो मैं ऑल फॉर इमिग्रेंट हूँ, बल्कि मेरा खुद, मैंने ये इमिग्रेशन से अपनी ज़िंदगी में जो जंगें 2 देखी हुई हैं, उससे मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं उनके साथ मुकम्मल तौर पे हूँ। और इसको अच्छी तरह से हैंडल किया जाए, इससे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो सकता था। आई होप कि अभी भी प्रिवेल होगी बात। तो शाह जी, ये 2 बातें मैंने पहले रखनी थी, इससे पहले कि आपके टॉपिक पे बात की जाए। शुक्रिया। Gigi, thank you very much, Ali bhai. I have a further leading question in regards to that. और मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ के ऊपर भी बात की जाए। अक्सर औकात हम ये समझते हैं कि जो रेफ्यूजीज़ अफ़गानिस्तान के अंदर से आए उन सब की हमने खाली मदद ही की है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर हमें ये देखने की भी ज़रूरत है कि बहुत सारे वो जो अफ़गान रेफ्यूजी आए, वो लोग यहाँ पे काम क्या करते हैं? व्हाट बिज़नेसेस आर दे इन्वॉल्व्ड इन? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? आर दे जस्ट सिटिंग? आर दे रिसीविंग एनी स्टाइपेंड्स और नॉट? और एटलीस्ट जहाँ तक मैंने इस चीज़ को थोड़ा-सा देखने की कोशिश की, मुझे पता ये लगा कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर वेल
uh, taken part in progression of Pakistan in many ways. They're self-sufficient. वो businesses के अंदर हैं, उन्होंने development की. फिर इसका एक ह्यूमन एंगल भी है. हम जब फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम या यूरोप या यूएस की बात करते हैं, वहाँ पे हमें हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात याद आ जाती है कि सर्टन लोगों को, सर्टन नेशनैलिटीज़ को अगर एक सर्टन टाइम पीरियड तक वो एक कंट्री के अंदर रहते हैं या उसका पार्ट बनते हैं, so they are given that nationality on the basis of contribution and whatnot. But that is something which I think, are not considering in this case. Almost मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं ना, या मैं किसी और पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों की बात कर रहा हूँ, in a general perspective, ये perspective भी सामने आता है, जिस तरह हमने कोई बहुत रहमदिली दिखाई है और अब उनका टाइम पूरा हो गया है. अगर सोचा जाए, इनमें से बहुत सारे लोग दूसरी या तीसरी जनरेशन के लोग हैं एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट अफगानिस्तान. इनमें से उन लोगों का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है. उनको बस ये पता है कि वो अफगानिस्तान से देर just as much Pakistani as anyone can be. And I think we need to reciprocate that. उनको choice मिलनी चाहिए, especially second और third generation के और even first generation के. फिर बहुत लोग हैं जिनकी शादियां हो गई यहाँ पे, उनकी कई कई तरह की इस तरह की चीजें, तो अब क्या करेंगे? They're going to send these people back. ये कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए. And there was a Gallup survey conducted by the Pakistani government by the Gallup people in regards to this move about the Pakistani government. और उसके अंदर there was a high percentage of people of Pakistani origin जो चाह रहे थे कि इनको बस वापस भेज देना चाहिए, जैसे इन्हीं की वजह से इतना कुछ है. Pakistan is a country of 220 million people. और 220 मिलियन प्लस लोगों की कंट्री के अंदर 1.7 मिलियन इज नथिंग. वो इतना ही ज़्यादा बोझ बन गए हैं. तो ये बात मुझे कुछ हजम नहीं होती. मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि 1.7 मिलियन लोग आपको क्या ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, इवन इफ दे वर नॉट वर्किंग, या आपके बड़े उनके ऊपर खर्चे हो रहे हैं एज इन पाकिस्तानी गवर्नमेंट. इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू मी that those people are self-contributing, self-sufficient, part and parcel of this society. They've bought into this society. The least what can be done for them, especially the second and third generation or the people who married here, is that give them an option. Do they want to go back? Will they be able to settle back? What kind of a loss are they going to incur? इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स हैं. आप बात I also want to add something here. अली भाई, जब तालिबानों ने टेक ओवर किया था ना अफगानिस्तान पे, तो मैंने देखा था कि इवन हमारे गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स, they were really happy because somehow they had some affiliation with the Taliban and they thought that, oh, this is going to be really good for Pakistan because Taliban are our brother and everything. But now it's not playing according to them. ठीक है. So अपने political जो भी उनके प्लानिंग है, उसके लिए गरीबों को इस तरह से इस्तेमाल करना कि जब तुम्हारा दिल चाहे उनको उधर फेंक दो, जब तुम्हारा दिल चाहे तालिबान बना के उन पे ऊपर भेज दो. I mean, Afghanistan have kind of become a playground for Pakistan. जब इनका दिल चाहे इनको टेररिस्ट भेज देते हैं, जब इनका दिल चाहे इनके अफगान रिफ्यूजीज भेज देते हैं. डोंट यू थिंक दैट्स अनफेयर? I think that's very unfair. अगर तालिबान हम पाकिस्तानियों को इतनी पसंद थे, तो चाहिए कि वो उनको उन सब पाकिस्तानियों को उठा ले कि जिनको तालिबान पसंद है, उनको ही उधर भेज दे. ये बेचारे तो भागे थे उन्हीं तालिबानों से. जी 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 शाह जी, आपने ऐड करना कुछ? ये मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाह रहा था. इसके पीछे थोड़ा सा डायनेमिक्स देखते हैं. ये तो एक मतलब क्राइसिस सिचुएशन है कि पाकिस्तान, दिस इज अ नोन फैक्ट दैट दे आर pushing people out, specifically people who are having Afghan origin. Why they are doing it? It's a very interesting aspect to consider. Of course, they are doing it to put pressure on Taliban, the current government in Afghanistan. Let's put it this way, right? Why do they want to put pressure? Because suddenly it seems Taliban has become very intelligent, the government part of it.
when I say Taliban, I mean the governing body of current Afghanistan. Somebody is telling Taliban that Pakistan has been making money to control Afghanistan from the Western, hemisphere from the last 30, 40 years. So why, Mr. Taliban, if you start behaving yourself a bit, instead of that money going to Pakistan, that money will directly come to you. पाकिस्तान में जो अमेरिका या वहां से फंडिंग आती थी पिछले 30-40 सालों से, जरा थोड़ा सोच के देखिए वो किसको काबू में रखने के लिए आती थी? जी अफगानिस्तान को काबू में रखने के लिए आती थी, राइट? तो अब यहां पे कोई एडवाइस कर रहा है तालिबान को कि भाई तुमको काबू में रखने के लिए पैसा इनको मिल रहा था, तो तुम अगर काबू में रहो तो पैसा तुम्ही को मिल जाएगा. एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड दैट इज द रीजन ये जो करंट फ्रिक्शन है. तो पाकिस्तान करेंटली शॉर्ट ऑफ फंड्स, प्लस तालिबान हैज बिकम इंटेलिजेंट, so that not to allow them the opportunity to make money on their behalf, and that's where the gist of the problem lies. So that was the introductory comment. जी मैं थोड़ी सी मधु साहब जो आपने क्वेश्चन पूछा, आंदर साहब आपने पूरी कर ली बात, मेरा ख्याल है मैं मधु साहब के क्वेश्चन पे वापस आता हूँ. जी देखिए मधु साहब, पहली बात आप जो ये कह रही हैं कि जब रजीम चेंज हुआ वहाँ, तो ये ऐसे, पहली बात ये है कि हमें ये एक फैक्ट है, अगर आप, क्योंकि हम एक वो नेशनल गेम खेल रहे हैं, नेशनल प्लेग्राउंड में नेशनल कंट्रीज बन के खेलने का, ये जो 195 या 196 कंट्रीज ने वो एक अपने ग्रुप में जाके अंदर से ताला लगा दिया है कि बाहर से कोई नहीं आएगा, हम 195 या 196 ही नेशनल खेलेंगे गेम आपस में, हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे. इस चक्कर में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस गेम के रूल्स के मुताबिक कभी भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान को कोई गुड न्यूज़ नहीं आई. पहले दिन से ही अफगानिस्तान ने कोई पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे उनके वो ये वाली हुकूमत हो या फलानी हो या उससे पुरानी हो. और ये चीज़ रिसोर्सेज की भी, और ये जो शुरू से ही जो हमारे मतलब ये जो पख्तून बहन भाई हैं हमारे, इनकी जो मतलब जनरल हमारे वो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज भी हैं, तो कोई अच्छी बात तो नहीं आई. और अगर अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही और इसके बदले हमारे अफगान गवर्नमेंट या अफगान वाले उस साइड पे लोग बैठे कि जी हमें ये फूलों के हार भी पहुंचाएं, हम इनको ये वाली वो मतलब गालियां भी देंगे और उनके साथ ये कुछ भी करेंगे और उसके ऊपर हमें हार भी पहनाएं, तो ऐसा प्रैक्टिकली दुनिया में नहीं होता. हर बंदा मेदुसा की तरह प्यार करने वाला या मेरी तरह नरम नहीं होता. और लोग नेशनल गेम खेलने में नेशनल कंट्रीज भी आपस में खिलाफ आ जाते हैं. हमने देखा है, क्लियर है, ब्लैक एंड वाइट है कि मैं एक लाइन पे एंड करने लगा मेदुसा कि जिस तरह क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो सेलिब्रेटिंग टाइम होगा उस टाइम जब उन्होंने, लोग सारे देख रहे कि जी काबल फॉल हुआ है. वो पाकिस्तान में लोग काबल फॉल होने को नहीं थे देख रहे, पाकिस्तान में लोग देख रहे थे कि यार यहाँ से तो इंडिया का मतलब जनाजा या इंडिया फारग हुआ है. तो ये जो एक वो गोल साइकिल में हम सब फंस गए हैं ना. मिसाल के तौर पे ये मेरे कंक्लूजन मार्क है कि जिसमें बड़ा मुल्क जो यहाँ सब कॉन्टिनेंट के साथ जो है वो उसको इंडिया को दबाने के लिए हमारे मुल्क को भी यूज़ कर सकता है बड़े अच्छे तरीके से. और फिर इंडिया ने कहा कि मैं भी उसको इसी तरह यूज़ करूं, कि मैं उसको लेके तो इसको यूज़ करूं. ये चीज़ें बड़ी छोटी हो चुकी हैं और पुरानी हो चुकी हैं. जो मुल्क अपने फ़ायदे, अपने राइट्स और अपने प्रिंसिपल्स पे, अच्छे प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, वो 100 साल की, 50 साल के लिए कौमों के साथ बात करेंगे. तो अनफेयर की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है. मैंने जैसे अर्ज़ कर चुका हूँ मेदुसा, कि आप जो ह्यूमन राइट्स हैं, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं. और आई एम श्योर, आखिरी बात, सॉरी क्योंकि मुझे 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, शाह जी ने भी ऐड कर लिया था बीच में कि मुझे उनको ये हज़म नहीं हो रही बात. देखिए सर, पैसों की तो बात ही नहीं है. पैसे अगर इनको 2 साल से, सॉरी 2 डिकेड से हमारे अफ़गान भाई, बल्कि इससे भी ज़्यादा, बल्कि 3 डिकेड होने वाली है मेरा ख़्याल है, तो उनको रख के तो उनको कर रहे हैं, उन पे वो एहसान नहीं थे कर रहे, वो एहसान नहीं थे कर रहे. बात ये चल जाना था, लेकिन इतनी ज़्यादा इंट्रूजन और उसके ऊपर वो लेने के देने डालना, ये एक फैक्टर है. फिर भी इन सब बातों के बावजूद मैं समझता हूँ कि जो अफ़गान भाई थे, वो जो जहाँ रहे इतनी-इतनी जनरेशन से, उनके राइट्स बनते थे, उनको अभी भी दें, दे सकते हैं. तो
ये दिल बड़ा ही करना पड़ता है और उनको भी थोड़ा-सा मतलब ख़्याल रखना चाहिए। शुक्रिया, मैं दूसरा बात लंबी होगी लेकिन आई होप आई मेड सम सेंस फॉर योर व्यूअर्स। नहीं, नहीं अली भाई, दैट्स फाइन, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन फर्दर ये है कि इन दैट वे यू थिंक इट्स पाकिस्तान इज जस्टिफाइड इन योर ओन ओपिनियन टू सेंड दीस पीपल बैक? डू यू थिंक दैट नहीं, नहीं, जस्टिफाइड? मैं नहीं समझता कि इस तरह की, जैसे मैंने आपको कंक्लूड करके बताया कि ये जो साइकिल है कि किसी को सज़ा देने के लिए उनको रगड़ा जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो हमारे देसी लोगों की कम्युनिटी डायस्पोरा में है, मैं बड़ी अच्छी तरह एक एक्सपीरियंस को जानता हूँ कि एक कंट्री में जो हमारे ये देसी सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, उन्होंने उस कंट्री को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंस्ट्रक्शन और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग करके तैयार किया। तो उसके बाद उन इलाकों में उनको दूसरे शहरों में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि वहाँ उनसे दूसरी नेशनैलिटी वाले आके लोग उन्होंने टेक ओवर कर दिया और उनकी कोई कंट्रीब्यूशन शुमार नहीं की जाती। तो ये ऐसी बात बिल्कुल गलत है। उनको बिल्कुल उनके हकूक देने चाहिए थे और अफोर्डेबिलिटी का इश्यू होता भी, फिर भी इसको टॉप प्रायोरिटी पे देना चाहिए था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो, मुझे उस औरत का नाम भूल गया, वो जो एक छोटी-सी बच्ची थी ग्रीन आइज़ वाली, टाइम मैगज़ीन के ऊपर उसका वो फ़ोटो भी आई थी, अगर कोई मुझे नाम बता दे। तो उसके साथ क्या शरबत हुआ? गोला। जी, तो शरबत गोला। ज़ुल्म है ना, ज़ुल्म की इंतहा है ना कि उसको, मैं कहता हूँ पूरे अफ़गानिस्तान को ना देते, कोई बात नहीं, आप मुझे पकड़ लें, मेरा मतलब मुहासरा कर लें आप लोग जो पैनलिस्ट हैं, सिर्फ़ उसको दे देते। तो वो तो हमारा नहीं दी दी गई, उसको परेशान किया गया। तो बस ये मैं 2 बार, आई होप आई मेड, मेरा ख़्याल है शाह जी आपको इसका जवाब मेरे जिस मैं बैकग्राउंड से आ रहा हूँ आपको मिल गया होगा। जी, जी, बिल्कुल। I just wanted that to be clear. I'm glad you did. तो आपको क्या लगता है इस टाइम के ऊपर इन पर्टिकुलर बस 40 साल होने की वजह से ये भेज रहे हैं, या क्या क्या रीज़न क्या है? व्हाई नाउ? ये पहले भी बातें होती रही हैं, लेकिन व्हाई ऑल ऑफ अ सडन नाउ? देखिए, मैं नहीं समझता कि अगर ये टाइमिंग कोई मतलब इससे कोई इमीडिएट वो करंट अफेयर से टाइमिंग का ताल्लुक है। बस वो हुँ, जिस पे वो मतलब वो कहते हैं ना कि वो गरीबों ने रोज़े रखे तो वो दिन लंबे हो गए, तो ये वही हिसाब हुआ है। मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर से इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है। ये चीज़ बस जनरली जैसे टाइम टाइट हुआ है इकोनॉमिकली, पाकिस्तान ने कहा हमने मेजर लेने हैं और ये बेचारे बीच में आ गए हैं। एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट मैं नहीं इसको समझता कि जिस तरफ आप कह रहे हैं कि ये प्रिसाइजली इन्होंने वो उसके लिए किया है। वो टाइम था पहले, जब अगर अगर ऐसी बात होती तो वो जब वो इंडिया वहाँ मतलब सो कॉल्ड पाकिस्तान के खिलाफ बातें ग्राउंड कर रहा था, अब तो वो रेलेवेंट भी नहीं रहा वहाँ। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई ऐसी बात होगी शायद। सही। मैं भी इस चीज़ को बस प्रूव कर रहा हूँ कि अगर शायद कोई ऐसा रीज़न है या रीज़न नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर आइदर, बट डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। मूविंग ऑन टू शाह जी, एक दोनों। बोनस एक लाइन आपकी जी, जी। ऑडियंस के लिए मुझे बोलो, ये बोलो। कहने दें कि सर ये सारी गेम में ये पाकिस्तान बहुत कंफर्टेबल हो गया है। पाकिस्तान को अब वहाँ 2 बंदों से नहीं डील करना, वहाँ पाकिस्तान को अब सिर्फ अफ़गान भाइयों के साथ डील करना है। वहाँ जो वो प्रॉक्सीज़ कह लें या वो जो लैंड को जो वहाँ मिसाल के तौर पे हमारे नेबर के वहाँ कुछ 37 या पता 17 कहते थे या 37 कहते थे, वो जो काउंसलेट खुल गए थे वगैरह, वो वहाँ से जो जनाजा निकला है उसके बाद तो फिर पाकिस्तान की तो पोजीशन बेहतर होगी, अगर आप जिस तरह पहले कह रहे हैं कि But do you टाइमिंग का realize ये कि फैक्टर होगा। recent times के अंदर India and Taliban have not only negotiated, but the tourism and the trade has exceeded from the previous government. अगर आप दूसरे और involvement और चीज़ों की आगे strategically देखें, तो even अभी इस वक्त do you know highest number of vloggers and tourists going into Afghanistan are all Indian. सर जी पिछले जो बात ये तो 4 सॉरी शाह जी, वो मैं अफगानी स्टाइल में इसको क्लोज करूंगा इस बात को, हुँ, सॉरी पख्तून स्टाइल में ही। आजकल आपको पता है एक ही लफा चल रहा है, और कुरैशी साहब ये आपकी ऑडियंस के लिए गिफ्ट है कि वो प्रोग्राम तो बढ़ गया ना, ठीक है ना? जी, वो प्रोग्राम तो बढ़ गया ना कि वहाँ वो ब्लॉगर जा रहे हैं और अभी तो वहाँ उसके प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ की माइनिंग का, और वहाँ के वो चाइनीज़ के साथ वो, और वहाँ के उनको चाइनीज़
प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट फॉरेन मिनिस्टर और उस लेवल पे अप्रोच मिल रही है, तो वो बढ़ गया प्रोग्राम। बस यही मैं कंक्लूड करूंगा। नहीं, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट। उन्होंने जहां तक कहा है, उन्होंने कहा कि वेयर यू लेफ्ट ऑफ बिगिन फ्रॉम देयर, देयर कैरिंग ऑन रिजम्पशन, वहां से वो रिज्यूम कर रहे हैं। तालिबान have gone out and negotiated with India in a very clear manner. They are not shy of stating that either. They see Indians and the Indian government as an ally. They don't see them as a force to be reckoned with, और वो जिस तरीके से वो सोवियत एरा के अंदर देखते थे। It's not like that. It's a different तो time. It's a different तो situation. तो शाह जी फिर आप उसका बता देना फिर अपनी ऑडियंस को कि अगर ऐसा है तो इस गवर्नमेंट का एक्स गवर्नमेंट के साथ फिर एक ही पेज हो गया, वो फिर भाई भाई हो गया और वो चुमियां शुमियां जफियां लेने लग पड़े हैं, वो फिर वापस बुला लें उनको, अमेरिका जो भाग के गए हैं या वो वेस्ट पे जो भाग के गए हैं, फिर तो वो एक स्टांस पे हो गया। आई डोंट थिंक सो कि ये केस है। वो ज्यादा प्रो इंडियंस है, ये इतने प्रो इंडियंस उधर नहीं है। भी देखें, जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आती है पाकिस्तान में, आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। दे आल्सो वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया। व्हेन अ नून लीग कम्स इन, दे टॉक अबाउट द सेम थिंग, एंड व्हेन पीटीआई कम्स इन, दे टॉक अबाउट द सेम थिंग। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर थोड़ा सा अब्रप्ट है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है हम पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग को कहें कि आप अपनी अपनी पार्टीज बंद करें, आप तो एक ही चीज़ के ऊपर एक पॉलिसी पे एग्री कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी विद अ पर्टिकुलर कंट्री। तो अब आप एक ही पार्टी बन के इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लें, डजंट वर्क दैट वे। आई थिंक नहीं शाह इसमें जी, इसमें मैं शाह एक जी नहीं, एक एक बड़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट बात आ गई। कराची साहब जी एक जी सेकंड, एक लाइन देनी जी पड़ जी गई है शाह जी। शाह जी आप, मैं तो आप बल्कि अच्छा शाह जी ने ये बात कर दी। शाह जी आप कितने खूबसूरत हैं ये आप थोड़ी तय करेंगे, ये तो हम देखने वाले तय करेंगे ना। कुछ चीजें आप पे डिपेंड नहीं करती कि आप क्या कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की पीटीआई और ये दूसरे तीसरे क्या कर रहे हैं कि जी हमें अच्छे रिलेशन इंडिया से चाहिए, वहां से इंडिया कह रहा है कि जी फिटे मुंह हमने सिर्फ नवाज शरीफ से रिलेशन अच्छे रखने हैं, हम उसकी बेटी की शादी पे तो आ सकते हैं, आप लोगों पे हमें यकीन नहीं है, तो वो भी मैटर करता है। इसी तरह ही नहीं, वो अफगानी जो एग्जैक्टली मर्जी मैटर करें, करता है, और इसी अफगानी वजह जो से मैं मर्जी कर आपको लें, कह रहा हूँ। पाकिस्तान भी मैटर करता है। देख जी 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 सर, देखें, बोलिए यू सॉरी। एक लाइन मैं शाह जी एक लाइन जस्ट ऐड कर दूं. So, जी while this can be debated who has a bigger influence on Afghanistan and Taliban, whether Chinese interests are more pertinent, whether Indian or whether US interests are more pertinent, but one thing can be articulated very clearly, that Taliban currently is not in sync with Pakistan. That's for sure. आप वो या तो एक बहस कर सकते हैं पाकिस्तान क्यों ज्यादा है, हाँ, पर I kind of तालिबान का agree with पाकिस्तान से, you, हाँ but हाँ I don't know to what extent. Like, in one thing is for sure, India has successfully developed initial relations with Taliban, and the way the current government in India and how the current government in Afghanistan are basically speaking, communicating, and how it's we have no translated. formal relation. We have no formal relations with Taliban. Not formal relations. Yeah. I understand no country has formal relations with them. But in terms of how the situations and the statements are being passed, it is not, you can't say that there is enmity or India has suffered in terms of a depleted relations in with Afghanistan, and what India was trying to do before Taliban and post Taliban. India is pretty much in the same position again. That's the main point. अच्छा, like I had a point to make. थोड़ा पुराना हो गया, but what the guy said. फकन भाई मुझे सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट करवाना दे। शाजी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, but generally when it came to the border situation with Pakistan and Afghanistan was generally better when Ashraf Ghani was the prime minister, before the In, Taliban. नहीं, Correct लेकिन me if in I'm terms wrong, of what, right? the border condition in terms of what? ये जो सारा TTP and these situations, उस time it was much better. तालिबानों के आने के बाद ही मेन जेल से उन लोगों ने टीटीपी के लीडर्स को वो खुला छोड़ दिया, इवन दो पाकिस्तानी वर रिजॉइसिंग कि तालिबान हमारे भाई आ गए. हाँ, और one of the first acts what And they Taliban hated Ashraf Ghani. carried Majority out. of Pakistani hated Ashraf Ghani. उसको इंडियन एजेंट बोलते थे.
अच्छा हाँ। मैं मधुसा इसमें आपने इसमें और शाह जी ने एक चीज, अली भाई एक पॉइंट बहुत देर से रुका हुआ था, जो बात कर रहे थे ना शाह जी, द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट्स, चाहे वो तालिबान की हो या उससे प्रीवियस हो जिनके वो अगेंस्ट आए, आई थिंक दैट जो पॉइंट आंदोलन ने इनिशियली रेज किया था ना कि तालिबान आर गेटिंग अ बिट इंटेलिजेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो वो पैसे की बात कर रहे थे, पाकिस्तान रिसीव्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ सम ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एड अफगान रेफ्यूजीज की वजह से जब वो इधर आए हैं, दे कैश्ड इट प्रीटी वेल, मैं और काफी इन्हें पैसे मिले। जो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज है ना, वो अगर इंटेलिजेंट आप होते हो, यू हैव टू डू दैट। पॉलिटिकल नैरेटिव्स, पॉलिटिकल स्लोगन्स आर समथिंग एल्स, बट जो रीजनल सिचुएशन आपकी है, दैट डजंट चेंज। जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जब पावर चेंज होती है, तालिबान आए, जो लोकल सिचुएशन है या ग्लोबल सिचुएशन है, दैट डजंट चेंज। आपको उसी तरह की इंटरनेशनल रिलेशंस रखने पड़ते हैं जो कि आपकी कंट्री के लिए, आपके लोगों के लिए बेहतर होंगे। और अगर आप वो नहीं रखेंगे तो फिर मसले हो जाएंगे। जिस तरह ट्रम्प स्लोगन लगाता था, वॉल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ट्रम्प के टाइम में वीजाज वर मोर इजियर फॉर पाकिस्तानीज एज कंपेयर टू व्हाट दे आर राइट नाउ। और ओबामा के टाइम में भी इट वाज डिफिकल्ट। तो there are certain political slogans and there are certain actual decisions that decision makers or policy makers take, which are not in line with what they were standing for, I would say. जी जी मैं एक लाइन बस ये देखें आप, ये मैं इस चीज से भी डिसएग्री करना चाह रहा था, मुझे अच्छा किया है मधुसा ने याद करा दिया। मधुसा ऐसी बात नहीं है जो आप कह रही हैं कि बड़े पाकिस्तानी खुश थे जी तालिबान के साथ रहेंगे ताल्लुकात। मुझे अच्छी तरह याद है शाह जी जैसे लोग, ये पाकिस्तान की बड़ी कम्युनिटी हैं, बड़ी डिफरेंट मतलब किस्म के ट्राइब्स हैं जो स्ट्रांगली खुश नहीं थे कि तालिब आ रहे थे, लेकिन और ये मतलब तालिबान हुकूमत में आ जाएंगे और वहाँ उसके बाद क्या होंगे। लेकिन वही जो हमें सब कॉन्टिनेंट में मार पड़ती है, जिसकी मिसाल है कि वो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे कोई तुक ही नहीं है। हम कितने काम सिर्फ किसी की दुश्मनी में करके खुश हो जाते हैं रियलिटी के अलावा। वो खुशी इस बात की नहीं थी कि तालिबान आ गया तो बल्ले बल्ले हो जानी है, खुशी इस बात की थी कि इंडिया निकल गया यहाँ से। वो वहां से देख रहे हैं, आप क्रिकेट मैच अभी हुआ है, आप इसराइल वाली स्टोरी देख रहे हैं। को जिसको नक्शे पे नहीं पता इसराइल का, वो यहाँ से युद्ध करने जा रहा है। वो मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान और मुसलमानों की नफरत में ये हमारा है। और इवन पाकिस्तानियों में भी यही प्रॉब्लम है। ये मिसाल दे रहा हूँ एक आपको, वो ये थी बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को कौन सा मैं कह रहा भुलेखा है पाकिस्तानियों नु अफगान जो वहाँ के जो शदीद जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, पाकिस्तान को जितना पाकिस्तान ने समझा हुआ, मेरा ख्याल है मधुसा वो तो दुनिया में कोई नहीं समझ सकता हमारे उनको। जी शुक्रिया। हाँ, तो अली भाई आपको नहीं लगता कि एट दिस पॉइंट दिस ऑब्सेशन इज रियली अब्सर्ड कि हमें हर वक्त ये टेंशन होती है कि बस इंडिया यहाँ से निकल जाए, इंडिया वहां से निकल जाए। India was technically not doing much with Afghanistan. India and Afghanistan have always had much better relationship than नहीं तो Pakistan and वो फिर Afghanistan. वो फुलरियां So it छोले was बेच रहे natural थे for ना them वहां। to. ऐसी तो मधुसा बात नहीं है ना कि वो 17 कौंसल खाने लेके फुलरियां छोले बेचने तो नहीं गए हुए थे अफगानिस्तान में। ये अली एक भाई तो साइकिल, फिर विशियस जो साइकिल है, ये उससे चल रहा है। तो वो तो अभी भी है, तो वो तो अभी भी है। अब इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें लग रहा था कि शायद तालिबान इंडिया के साथ ताल्लुक नहीं रखेगी बिकॉज वी एक्सपेक्ट तालिबान टू एक्ट बारबेरियन, ठीक है। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है इस बार, वो इस तरह के नहीं है, दे आर लाइक अपडेटेड। यानी कि अब वो मुसलमान हो गए हैं, इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, ये कह रहे नहीं नहीं अली भाई, मैं ये कह रही हूँ कि अब वो जरा अपडेट हो गया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। देर नाउ अभी वो उनका जो क्या कहते हैं उसे, स्पीकर है, वो जो है, आई मीन ही स्पीक्स इन प्रॉपर इंग्लिश एंड ही नो all the stuff, you know, basics of politics, even though he's a Taliban, he's a proper, you know, mullah type. बट माई पॉइंट इज कि अब उन लोगों ने तो अभी भी ताल्लुकात, इनफैक्ट अफगानिस्तान और इंडिया के हमेशा से ही ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। तालिबान और नो तालिबान, दे ऑलवेज हैड ग्रेट रिलेशनशिप। अफगानिस्तान को जो मसला था वो पाकिस्तान से था, उनको इंडिया से कोई मसला नहीं था। तो कहीं ना कहीं आगे पीछे इंडिया ने तो इधर आना था, इंस्टेड कि हम अपने लिए दूसरी साइड पे ऐसा अशरफ गनी जब तक था एटलीस्ट ये टीटीपी का मसला तो तब सॉल्व हो गया था ना, बीच में जब ज़रबे अज़ब वगैरह हो गए थे। एक इसमें तड़का और ऐड कर देता हूँ।
अफगानिस्तान के मसले भी पाकिस्तान की ही वजह से थे। इफ यू लुक इन रेट्रोस्पेक्ट, अफगानिस्तान के मसले भी प्रीडोमिनेटली पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट करे हुए थे। No, I would totally disagree. I would totally disagree. It was a global warfare जो कि आपका कोल्ड वॉर के सिचुएशन में बना था. It wasn't just Pakistan involved in that. नहीं It आंदोलन was, जी Just to add one small point here, Medusa, एक छोटा सा point फुरकान के response में, while it may have been started by Russia and other aspects, right? But Pakistan milked it and they never let it settle. They never let Afghanistan settle. Yeah. So we were according to your भूल जाते हैं. एक सेकंड. according to your आंदोलन जी आप argument, one line, Medusa ji, एक line. According to your argument earlier, we played intelligent back then, the way Taliban are playing intelligent right now. Thank you. अच्छा आंदोलन जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि अगर मैं फेयर अनबायस्ड वो से देखूं तो सिंस 1947 अफगानिस्तान वाज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, इट वाज वन ऑफ द टू कंट्रीज हु डिड नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान in United Nation. In fact, Dost Muhammad Khan, the prime minister at that time, actually was behind the Pashtunistan. वो AP Fakir का जो movement थी, Pashtunistan movement, he was funded by Afghanistan. They wanted to separate KPK and from Pakistan. And then in reply to that, Zulfikar Ali Bhutto created the Afghan cell, and then we see as and then Taliban, Mujahideen came, and then Taliban came, and we know the rest is history, right? But it was not exactly. You cannot say that it was entirely on Pakistan. I mean, I do not endorse the Taliban and the Mujahideen thing, but I guess you gotta do what you gotta do to survive. मैं थोड़ा सा precisely this at this point of time. So they are now trying to stabilize and reap the benefit which otherwise would have gone to Pakistan. अच्छा, मैं थोड़ा सा मधु साहब इजाजत दें, मैं अभी आंदोलन साहब ने तड़का बीच में लगाया, तो मैं तड़का आपकी ऑडियंस के लिए थोड़ा नॉर्मल कर देता हूँ, क्योंकि हमें भी मजा आ रहा था तड़के वाली चीजें खाने का. प्रॉब्लम पता है क्या आंदोलन साहब ये हो रही है कि मैं ये आपको अर्ज किया आपकी ऑडियंस के लिए, दूसरा ये साइकिल है, इसमें कोई दूध के नहाए हुए पाकिस्तानी नहीं है कि सिर्फ उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो आगे ये वो फेंक रहे हैं, जो इनके साथ हो रहा है ये आगे से उसके साथ कर रहे हैं. वो बड़ी ताकत, ये साइकिल में सारा मसला ये जो है, ये वो उसको मार रहा है, वो आगे से उसको मार रहा है, वो उसके कहने पे मार रहा है, ये चक्कर चल रहा है सारा. मेरी रिक्वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के दोस्तों से, बहन भाइयों से, सब ये है कि आप ग्रो अप करके लेके आए ना, आज हम यहाँ पे इस पे बैठे हुए हैं मधुसा, तो आप सारी बातें छोड़े जी. हमें क्या प्रॉब्लम ग्लोबल की, और ये की हमारी वो शरबत बेगम है जो आपने नाम बताया, सॉरी मुझे नाम नहीं आ रहा, जो भी है, क्या मधुसा नाम था? शरबत गुला जी, शरबत गुला को दे हाँ लेके, मैं उसके लिए खड़ा हूँ कि शरबत गुला को, बहन हमारी को बुलाएं, उसको लाहौर में बुला लें, अंदरून लाहौर में ही हम रख लेंगे, उसको पंजाबी भी यकीनन आती होगी, ना भी आती होगी फिर भी कोई मसला नहीं है. ये बात है, आप अपना वकार उस वक्त लेके जाएं, आप अपनी सोच उस वक्त उस तरह बना लें. असल में तो हम सिविलाइज्ड लोग हैं, अब दूसरे लोग बाहर से हमें बता रहे हैं जी ये सिविलाइज नहीं हो रहा, सिविलाइज नहीं हो रहा. और अगेन मैं यहाँ कंक्लूड करूंगा मधुसा, तो गंजी ने नाना की है तो निचोड़ना की है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन जबान से तो हम कम से कम ये किसी के राइट्स की बात कर सकते हैं ना, चाहे वो कहीं भी हो, सब कॉन्टिनेंट में. शुक्रिया. अच्छा, मैं राणा साहब को कहना चाहूँगा कि राणा साहब अगर आपका माइक कनेक्ट होगा तो फिर हम आपको पैनल पे ले सकेंगे. आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पूरे का पूरा पैनल जो है वो हाथ धो के और घोड़े बेच के पाकिस्तान के खिलाफ हो गया. नाउ यूजुअली आई लाइक टू स्पीक अगेंस्ट द पाकिस्तानी एवरीथिंग, स्पेशली द आर्मी एंड इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन क्योंकि आप सब लोग हाथ धो के बैठे हुए हैं, तो आई एम गोइंग टू बी चेंजिंग द साइड्स. पाकिस्तान जिंदाबाद, आप लोग जाएं भाड़ में, ठीक है ना. ऑन ग्राउंड कुछ रियलिटीज हैं, प्रैक्टिकल रियलिटीज, ये भाड़ में जिनकी हम वजह से अकेले नहीं, सब जा रहे हैं, आप अकेले रह जाएंगे सेठ साहब. ये भी है यार, चलो कोई पहले नहीं, तो मैं भी ये आपको चाहूंगा कि आप जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सारे लोग कैसे हो गए हैं, और
what were those points? That was a Yeah, very black and white. basically the idea that the way that Pakistan has treated Afghan refugees throughout its course, and the way that it is treating it now, all of it has to do with some sort of ethnical bias or some sort of political enmity, uh, and the concept that Pakistan as a whole is just meddling with the lives of the Afghan people, uh, similar to how uh, How America. did you get all that? We're talking about a simple policy where there is a disagreement about Afghan refugees, जिनमें से कुछ first, second, or majority of them second and third generation Pakistanis हैं, who all of a sudden are being told to leave Pakistan now. हाँ, उसके That ऊपर मैं is आता हूँ. not against Pakistan, that is against a policy. For No, instance, अभी यूनाइटेड किंगडम के अंदर there was a very similar case about Jamaicans who came in the 70s. ठीक है, और उन उन लोगों के उनको पासपोर्ट्स नहीं ये दे रहे थे, उनके यहाँ बच्चे भी हो गए, आगे ग्रैंड पेरेंट्स भी हो गए, आगे उन्हें शादियाँ भी की, ठीक है, आगे उनकी जनरेशन्स भी ग्रो कर गई, and they were sending those bunch of old people trying to send them back to Jamaica. It doesn't work that way, is it? That is not against UK. जब यहाँ वहाँ पे तो सारे इस चीज के बारे में बात कर रहे थे, आज तक किसी ने एक बात नहीं कही कि that was against the UK. This is obviously a statement against a policy, a state policy, it which is has come against into a agreement. That policy is which is not a against Pakistani Pakistan. policy, and We're trying to see. no, no, you have to understand, not Yeah, but just. that is not against Pakistan. That is Yes, not Sid, if against. something is wrong, you cannot say that it's so just because someone is pointing Yeah. out that something is wrong, they're against that person at all. I can point out something is wrong with a person and still not be against that person. I mean, I love Pakistan as much as you do, but what's wrong I is don't. wrong. It would be unfair for me to say that, oh, it's well क्या देखो, deserved, they should अगर just all अगर go फॉर and एग्जांपल एक The एक thing is, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर फॉर एग्जांपल अभी आप यूके, यूएस या सऊदी अरेबिया के अंदर अभी थोड़े अरसा पहले पाकिस्तानी वर्कर्स और इमिग्रेंट वर्कर्स की बात हो रही थी कोविड के टाइम पे कि उन सब के वीजास कैंसिल करके उन्हें वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए. We did not like that, right? That was not against Saudi Arabia. That was against that policy कि क्यों पाकिस्तानियों को या बांग्लादेशीज को या एक सर्टन लोगों को के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. या फॉर एग्जांपल जब वेस्ट इंडियंस को ब्रिटेन वापस भेज रहा था, ठीक है, 2018 के अंदर, we did not basically come out and basically say कि ये यूनाइटेड किंगडम के साथ ने बड़ी ज्यादती इन लोगों के साथ करती है या ये हो गया है या यूनाइटेड किंगडम बहुत you are बुरा है ये now करने के लिए. here इट्स picking. Now अगेंस्ट द you're here. पॉलिसी. यहाँ पे एक सर्टन Sadiq, लोगों की बात हो रही है. सो गेट दैट we स्ट्रेट. we are as of right now here picking the comment that I said against Pakistan. Uh, Even though I can definitely, keep on arguing on it, uh, but we have a topic to discuss. No, no, आप it's उसको very important that when you make a claim like that, I know we have a topic to discuss, but that's a statement के for the entire panel, ना अली भाई, ना मैंने, ना फुरकान भाई, and even Andolan did not pass a statement against Pakistan or anti-Pakistan. the That's against a statements. policy. No, That is what the conversation is about. let it be the policy. It is a policy made by Pakistan. Now we can go into the semantics of it, or we can discuss the No, situation. so do you think it's a good thing that those people Okay, are okay, being okay, okay. I'll make it easier and add one more point to the discussion, Can I and can that I is just that. can I just add Uh, one simple thing? A second. Sid, mhm. there was a saying that the greatest form of patriotism is when you love your country but at the same time criticize it. Can criticize Yeah, it. yeah. That's a very fair statement. But my point was basically currently, due to policy implement we here, it's not an elected government. It's an interim government. और वो भी हमें देखना चाहिए कि
इंटरनली पाकिस्तान में अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है और उसने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की है और ये अच्छा, किसके तो कहने पे की है, और जो हमारी करंट गवर्नमेंट इंटरिम चल रही है वो किसके कहने पे चल रही है। ये आई विल गो स्ट्रेटली टू लाइक स्ट्रेट टू सेट कि अब मुझे बताओ कि ये डायरेक्शंस कहाँ से आ रही हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने तो ये स्टेप नहीं उठाया। इंटरिम गवर्नमेंट में इतना एक स्ट्रिक्ट और एक इतना ड्रास्टिक स्टेप क्यों उठाया गया और किसके कहने पे उठाया गया और किसके डायरेक्टिव पे उठाया गया। चलें जी, एक डिस्कशन ऑन फुरकान भाई Furkan ji, on a lighter side, just a small comment. So, at least I am quite hopeful about Pakistan now with the interim prime minister. Because he also come from a Khatri descent. So, like, the British prime minister as well as your current interim prime minister has a Khatri background. So, you are in good hands. यार चले, बड़ी थैंक यू। जबरदस्त बात है। आंदोलन जी, सिखों फिर तो सिखों ब्राह्मण के होता तो गुरु ज्यादा जो हैं बेहतर नहीं वो था। भी खत्री, पाकिस्तान का वजीर आजम भी खत्री, खत्रियों की तो मौजें हो चुकी। नहीं नहीं, वो नहीं, ब्राह्मण खत्री होता तो ज्यादा ज्यादा बेहतर है। बेहतर ना नहीं होता। नहीं, मैं दे देता हूँ जवाब, वो ब्राह्मण से भी बेहतर था। खत्री ज्यादा बेहतर है ब्राह्मण से। But that's not the point. यार फुरकान आखिर भाई, आंदोलन भाई खत्री हैं तो और क्या, मतलब आंदोलन भाई से बेहतर कोई हो सकता है? क्या ख्याल है? ये भी ठीक है। Anyways, Furkan bhai, uh, the easiest answer would be that such a policy would have been made by the bureaucracy at the orders of whoever is controlling the strings. लेकिन अगर आप इसको उस माइंडसेट से निकल के कि अमेरिका सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर देखेंगे, there are things that were happening that did call for such a policy. Now, I do not agree with how the policy has been conducted. आप सब में से मेरे ख्याल से I am the only person who is directly affected by this policy in a bad way. मेरा काम के ऊपर असर पड़ा है. So I should be speaking against this policy as much as possible, but somebody has to speak in favor of it and show the the better side of it. स्मगलिंग एक इश्यू हमेशा से अफगानिस्तान के साथ रहा है, एवर सिंस एवर। ये मैं गचक खा रहा हूं, ये अफगानिस्तान से आई है। मसला ये नहीं है कि अफगानिस्तान से आई है, मसला ये है कि स्मगल होके आई है और वहां से पैसे नहीं आते हैं, वहां से मटेरियल आता है, वो यहाँ पे बिकता है, यहाँ से मटेरियल जाता है और अफगानिस्तान में चला जाता है। And none सॉरी, of it मैं is ये legal. करता नहीं, मैं ये नहीं करता। आई एम कटिंग यू ऑफ। उन बॉर्डर्स पे कौन खड़ा है? सिद्ध भाई, बॉर्डर्स पे कौन खड़ा है? मैं भी ये पूछ रहा था। कोर कमांडर्स जो बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक आपके जो इदारे हैं जो बैठे होते हैं, उनके कितना स्टाफ उधर खड़ा है बलूचिस्तान के, ठीक है, और उधर कितना उनका दिहाड़ी लगती है। मैं अब यही लैंग्वेज यूज करूंगा, ठीक है। दिहाड़ी तो टॉप टू बॉटम, ठीक है। इट्स एन इकोनॉमी, इट्स अ इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी है। आपके बड़े से बड़े लोगों ने इन द आर्म्ड फोर्सेस या ब्यूरोक्रेटिक वालों ने आके ये क्लेम किया है इट्स एन इकोनॉमी। अगर हम ये कर देंगे तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ट्रक्स चलाते हैं, सही है, सप्लाई चेन है पूरी। इट्स नॉट दैट सिंपल के अगर आप इनको एक्सपेल कर देंगे, ठीक है, तो दैट ब्लैक मार्केट या ब्लैक इकोनॉमी वुड सीज टू exist. That is not going to happen. There are pockets that needs to be filled. Those are greedy pockets, and they won't stop. ठीक है? No, that's not the thing. I would disagree with you on that, Furkan bhai. Those greedy pockets need to be shut down. That's the proper way to do it. If we're saying कि हाँ वहाँ पे आर्मी के काफी ज्यादा जो से पर्सनल हैं जो कि बहुत दो नंबरी करते हैं, सो शुड वी लेट देम डू इट और शुड वी कट द हेड ऑफ द स्नेक? और सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है फुरकान भाई, जो सबसे मेजर रीजनिंग थी ये सारा कुछ एकदम करने की, वो डॉलर्स थे। नाउ
ये चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर्स अमेरिका हमें दे रहा है इस चीज को करने के लिए, लिटरल फिजिकल डॉलर्स in the shape of currency were being smuggled at large physically। वो पकड़े जाते रहे हैं और उसके पीछे की पूरी कहानी है, और जो कि न्यूज के अंदर बताए भी गए हैं, उसकी वजह यार से। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि 1.7 बिलियन के अंदर जो मेजोरिटी है उसके अंदर राउंड अबाउट 40% तो अंडर एज चिल्ड्रन है जो अभी तक 12 साल के भी नहीं हुए। उसके अंदर 20% इस तरह के लोग हैं जो जो कि प्लस द एज ऑफ 60 हैं, जिनके पोते पोतियां यहाँ पे रह रहे हैं। बाकी आपका बचा 40%। वो 40% के अंदर भी 30% से ज्यादा लोग जो हैं वो केपीके के अंदर भी नहीं रहते, ठीक है। वो अपनी फैमिलीज के साथ बाकी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर डूइंग वर्क ओवर हियर, दे हैवंट इवन गॉन। एंड डू यू नो राउंड अबाउट उसके अंदर 40% से ऊपर लोग हैं, अगर आप उनकी पॉपुलेस देखें, जो कभी जिनका बाप या वो खुद कभी अफगानिस्तान एक दफा भी नहीं गए, और आप बॉर्डर then क्रॉस why are करने they की not बात। documented? Then the I'm question talking rises, about the 1.7 million people who are documented. and they are going They're where? being told to go. अभी ये जिस खातून की बार बार, जिन लड़की की अली भाई नाम ले रहे थे, मुझे भी नाम भूल गया है, ठीक है, उस लड़की को आपने देखा है? उस लड़की को, वो अब औरत बन चुकी है, उसको पाकिस्तान ने यूज किया एज अ पोस्टर गर्ल, ठीक है, अपनी टूरिज्म के अंदर, अपनी हर चीज के अंदर। आज तक उसको कोई पैसे नहीं दिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी किया, ठीक है। उसके आगे आप बच्चे देखें तो शी इज मैरिड टू अ पाकिस्तानी गाय, ठीक है। आधी उसकी फैमिली जो है वो हो चुकी है पाकिस्तानी इन एवरी सेंस। वो कौन सी स्मगलिंग कर रही है? उस तक को तो आपने वापस भेज रहे हैं, ठीक है, उसको भेज चुके हुए हैं। तो द इशू ओवर हियर इज कि ये तो स्मगलिंग कर ही नहीं रहे, जो स्मगलिंग कर रहे हैं वो तो बॉर्डर के ऊपर एक Indelicate रेगुलर charge it is लोग हैं। selected. ये लोग तो मेजोरिटी के अंदर जो रजिस्टर्ड लोग हैं, ये तो कभी गए ही नहीं बॉर्डर क्रॉस करके। मेजोरिटी के अंदर दे आर डॉक्यूमेंटेड Okay, एवरी डे, okay, No, just yeah, Shahid, like okay, just okay. like a Sid, person from मैं Pakistani origin yeah, going I into think we should, another country for work or yeah, ending up there I, as a refuge। यार बात खत्म कर लेने दिया जी, करो। अगर एक बंदा कर रहा है कंटिन्यूअस, फ्लो टूट जाता है यार, इस तरह ना किया। शुक्रिया आपका। अच्छा, तो उसके अंदर रिजल्टेंट क्या होता है कि आप जब उस चीज को देखते हैं, इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम अ पाकिस्तानी गोइंग एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, और वहां पे वो अपनी लाइफ बनाए। रेफ्यूजी के स्टेटस पे ही बहुत बंदा गया है। ऑन जेन्युइन केसेस इराक से, अफगानिस्तान से, पूरी दुनिया में लोग गए हैं, पाकिस्तान से भी गए हैं। उनको एक दिन उठ के सारे कहें कि आप वापस चले जाओ, ना आप अपनी प्रॉपर्टी का कुछ कर सकते हो, ना आपकी जो रिलेशंस बनी उनका कुछ कर सकते हो, ना आप कोई और चीज कर सकते हो। दैट इज हार्श, दैट कैन डोंट बी कंडोन्ड इन माय ओपिनियन। आगे आप, मुझे नहीं पता उनसे स्मगलिंग कैसे कर। I want अच्छा, I want to add one small point to it. So वो जो कवर वाली लड़की है शरबत गोला, I was reading up on her to see how she is now. So after she became famous, the Pakistani authorities made her life hell. ठीक है, जिसकी वजह से she went back to Afghanistan. She actually complained to some news reporter or something, and she said that the picture made my life hell. ठीक है, उसके बाद the photographer who actually took the picture of Sharbat Gola, he decided to aid her and help her out in her problems. मतलब उस तस्वीर को खूब इस्तेमाल करके उसका जीना भी हराम किया था पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने। 2-3 दफा आई थिंक उसको डिपोर्ट किया था और उसको तंग करते थे उसके रिफ्यूजी स्टेटस पर। Just want to add that. I think we have other speakers. I'll go directly to Rana Fayaz. Rana Fayaz साहब, go ahead. टॉपिक पे और ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है इस पे? जी, राना साहब आवाज आ रही है?
फुरकान भी आवाज आ रही? जी जी आ रही है जी, गो अहेड। अच्छा शुक्रिया। बात ये है सिद्दीकी साहब, जो आप बात कर रहे हैं, हम सब भी मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, लेकिन जो मुल्क चलाने वाले उनकी हरकतों पे हम जो है ना बड़े नादिम हैं, बड़े परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। बहुत सारी एग्जांपल हमारे दोस्तों ने दी। एक एग्जांपल मैं ऐड करता चलूं कि डॉक्टर आफिस सिद्दीकी कोई फरिश्ता ने उनको पकड़ा के अमेरिका को, या वो जबरदस्ती तो नहीं उठा के ले गए। तो बात ये कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना सिद्दीकी साहब ये कि जो अच्छा मुल्ला उमर जो थे वो किस लिए खफा थे पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से कि जो है इन्होंने कैसे वो जो सफीर थे अफगानिस्तान के, उनको किस तरह जालिमाना पीटा गया, मारा गया, उनको अमेरिका के हवाले कर दिया गया। तो जब ऐसे मामलात होंगे तो बात ये कि कितना कोई बर्दाश्त करे, कितना कोई जुल्म या जो ना ये सहता रहे। और जो दिल में है, जो आप यानी कि इंसानियत के आप तो मेहमान नवाजी दोस्ती के काबिल भी नहीं है, आप तो इत्मीनान के काबिल भी नहीं है। तो बात ये है कि इसी वजह से जो है ना हम लोग ये डबल माइंडेड हैं कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और हमारे जो मुल्क जो अच्छा काम करना चाहते हैं, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको भी परेशान किया जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे इसके अलावा मैं कुछ और ऐड करता चलूँ, इमरान खान के साथ कुछ लोग बाहर से आए, ब्रिटिश लोग, नेशनलिटी रखने वाले, अमेरिका की नेशनलिटी रखने वाले, कि इस मुल्क के लिए कुछ करें, फिर उनके साथ क्या किया गया। तो इस माहौल में रहते हुए तो भाई कहाँ, बस आप ना गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप बदमाशी कर रहे हैं, और जो आपका दिल चाहेगा, जो आपकी मर्जी होगी, आप वो करना चाह रहे हैं। आप मुल्क नहीं चला रहे, आप बस एक बदमाशी कर रहे हैं, और एक ग्रुप बैठा हुआ है जो इस सिचुएशन को लेके चल रहा है, और जो वो चाहेगा वही होगा, बाकी सब भाड़ में जाए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए, जनता वाली बात है। बहुत शुक्रिया। फुरकान भी जरूरत होगी तो मैं बोलूंगा। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी ना पॉइंट्स का रिस्पांस देना चाह रहा हूँ। जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ शरबत गुला के बारे में, तो वो तो गालिबन इटली में नहीं बैठी हुई थी 2021 से। पता नहीं पाकिस्तान में कब वो हुई है। अभी शिफ्ट हुई है। वो अभी शिफ्ट हुई है जब उसने उस फोटोग्राफर के साथ जब वो किया गया कि मतलब लाइफ बीन मेड हेल बिकॉज ऑफ द फोटो, उसके बाद शी वाज आई थिंक ठीक है, इस सेट पाकिस्तानी पॉइंट ये गवर्नमेंट कि ने as उसको soon Said point पता है क्या है? As soon as the Pakistani authorities, after finding out that she was a person of Afghan origin, and her status is not cleared, they started to basically ask her to leave. ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये इमरान खान के दौर के अंदर भी ट्राई किया गया था. So those people who are basically making that statement, जब इमरान खान का टेन्योर बिगिन किया था कि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने कंसेक्यूटिवली करने की कोशिश पहले भी की है एंड इट हैज फेल्ड. इमरान खान ट्राइड है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंडर भी ये होने का पॉइंट आया था, और ये पीपल्स पार्टी की जरदारी की गवर्नमेंट के अंदर भी ये बात आई थी. सो दिस इज लाइक for the third time they're continuously trying to do that. 1.7 मिलियन लोगों की डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसके अलावा हम बात करते हैं ठीक है हम उम्मा हैं, हम मुसलमान हैं, पैलेस्टाइन के लिए हमने रोज बात करनी है, ठीक है, हमने बोस्निया के बारे में रोज बात करनी है, हमने दूसरी कंट्रीज के बारे में रोज बात करनी है, लेकिन जो हमारी कंट्री के अंदर आ गए हैं वो मुसलमान नहीं है क्या? क्या उनको आप पाकिस्तानी नहीं तस्लीम कर सकते? ये बड़े अफसोस की बात है. दिस इज द बिगेस्ट पैरिटी. आजकल लोग इसराइल के बारे में इतनी गुफ्तगू करते हैं, ठीक है. डू यू नो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द ज्यूज एंड द मुस्लिम्स इज? And this is a point of thought. Anyone who is born anywhere around the world and happens to be of Jewish origin, usko wo Jewish nationality, Israeli nationality dete hain. This country was made for Muslims of South Asia. At the end of the day, we cry about that, we speak about that, the passion is about that. Muslim ummah ye kar degi aur Muslim ummah wo kar degi. But when it's time or to do something which is possible, तो उन्हीं लोगों को, अपने ही लोगों को आपने डिस्प्लेस करना है. अगर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, नहीं जो शाजी, तीन दिस तीन इज जनरेशन नो नो से यहाँ पे रह गए हैं, then you don't have a foot to stand on. That is all a lie. It's a sham. कल नो शाजी, पैलेस्टीनियंस नो नो नाचेंगे तो आप दैट्स उनके साथ भी यही बिहेवियर करेंगे.
नहीं शायद जी देखें, ऑन ग्राउंड जो मैं देख रहा हूँ ना आई डोंट नो कि पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ शायद है कि नहीं है। ऑन ग्राउंड जो मैं देख रहा हूँ, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, वो तो बड़े चिल माहौल में है मेरे क्योंकि मैं करंटली काम कर रहा हूँ उनके साथ। वो आराम से अपने जानवर भी लेके आ रहे हैं, और जो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आ रहे हैं और जो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू ये हैं यहाँ पे, वो तो आई डोंट सी देम ऑन ग्राउंड एनीवेयर वरीड। जिन लोगों को मैं वरीड देख रहा हूँ वो लोग हैं कि जिनकी फैमिली के अंदर एक बंदा डॉक्यूमेंटेड है, बाकी सारे जो हैं उनका कोई ऑफिशियल पेपर वर्क नहीं है। एंड दैट एक्चुअली इज अ थिंग कि एक फैमिली के अंदर एक बंदे का जो सा पेपर वर्क होता है एंड द रेस्ट ऑफ देम डोंट एग्जिस्ट इन एनी काइंड ऑफ डाटा। आप ये कह रहे हैं कि भी सारे हम मुसलमान वगैरह, ठीक है, वो मुसलमानियत और इस्लाम का परचम हम सर बुलंद कर लेते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो 100 लोगों में से वो जो 10 लोग जिनकी पोटेंशियल है क्राइम की, वी नीड टू डील यार मैं एक बात बताऊं, with it. डू यू नो व्हाट नहीं द नहीं, एक प्रॉब्लम सेकंड शाजी, गिव मी अ मोमेंट, है एक सेकंड। सिड, इट्स बिन लाइक कुछ अफगान रिफ्यूजीज यहाँ से 40 साल से रह रहे हैं, ठीक है? तो ये जो 40 साल थे, तब किसी को टेंशन नहीं हुई कि अच्छा यू नो दिस इज रियली बैड फॉर अस, ठीक है? तब किसी ने नहीं कहा कि यार यू नो व्हाट, यू गो बैक और मेक योर पेपर, ठीक है, डॉक्यूमेंट योरसेल्फ, ठीक है, अप्लाई फॉर द पासपोर्ट व्हाटएवर। किसी को ये टेंशन नहीं होगी। अचानक एक महीने में दे एक्सपेक्ट देम टू, आई मीन एक महीने में क्या होता है? एक महीने में किसी का वीजा लगता है? एक महीने में क्या होता है? ठीक है, इट वाज लाइक एक महीने का टाइम देकर on 1 that नवंबर end को I तुम can उसी agree. को, एक सेकंड No, I'm not done yet, एक सेकंड, एक महीने का टाइम देकर उसको कहते हैं कि 1 नवंबर तक तुम लोग निकल जाओ, वरना हम तुम्हें फोर्सफुली एक्सपेल करेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट डॉक्यूमेंटेड और अनडॉक्यूमेंटेड, इट वाज ऑलवेज मेंट टू बी लाइक दिस। लाइक एक महीने में तुम क्या डॉक्यूमेंट बनाओगे और क्या उनको, like that's silly to say कि अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बनवाए? वो बेचारे सादे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको शायद इतना ख्याल नहीं आया होगा। हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था ना कि पहले से ही कह देते कि यार रिफ्यूजीज हमारे साथ ना रहे। सबसे ज्यादा नहीं, एक सेकंड, इस रिफ्यूजी के सर पे, नहीं एक सेकंड, इस रिफ्यूजीज के सर पे सबसे ज्यादा पैसे किसने लिए? इस रिफ्यूजीज के नाम पे वो सबसे ज्यादा क्रेडिट किसने लिया है कि अफगानिस्तान में अफगानियों को हमने जगह दी है, फिर अफगानियों के सर पे पैसे लेना, ये सब किसने किया है? वो भी तो हमने की है। अब जब देर नॉट यूजफुल टू अस मोर, सो यू नो व्हाट, एक महीने का टाइम है, चलो 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 निकलो, ये कौन सा तरीका है? I can agree with you in terms of time कि भाई ये टाइम बहुत कम दी है और पहले क्यों नहीं कहा, जिसके ऊपर मैं ये आर्गुमेंट कह सकता हूँ कि जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट वहां पे बनी है तो डॉलर्स का जो सा रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, दैट बिकेम अ वेरी बिग प्रॉब्लम वेरी सडनली। ये आर्गुमेंट किया जा सकता है, बट स्टिल अगर आप ये कह रहे हैं कि वो सादा से लोग हैं और वो बिल्कुल अनपढ़ हैं और they don't understand these things, you are downplaying a very smart group of people. They are very reasonable people. उनकी फैमिली के एक बंदे के डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। एक बंदे के पूरे हो सकते हैं, बाकियों के नहीं होते हैं। और अगर आप कहते हैं कि पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, 1200 रुपए के अंदर कराची के अंदर जो सा कितने लोगों का जो सा बनता रहा है, एंड इट्स नॉट इवन कोई हिडन चीजें, इट्स एन ओपन सीक्रेट। कराची के अंदर वो तो बल्कि वो जो से मौलाना साहब थे वो बता रहे थे कि इस तरह यहाँ पे सारा कुछ होता रहा है, तो ये लोग अब जो उनसे कह रहे हैं कि अफगानी जो से बाहर जाए, हत्ता कि जिनके कार्ड्स बन गए हुए हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। So if you're saying that they are so stupid that they don't know how to make cards, you're insulting a whole ethnicity. They are not stupid No, people. I'm not saying देखो, I'm not saying that they're stupid. You need to understand, ठीक है?
back before Zarbe Asab, there is this place in Afghanistan, Khost, I believe you know, in my Pashto it's called Khes. Okay. For the longest of time, I didn't know that it was actually part of Afghanistan and not part of Pakistan, because लोग वहां पे उतने खुले जाते थे, ठीक है, खुले जाते थे, खुले आते थे, तब ये वाली सिचुएशनशिप नहीं थी, ठीक है. So maybe they didn't think it through, I understand, ठीक है. बट ये भी ना बोलो कि पाकिस्तान ने खूब उनको मिल्क नहीं किया. They milked them. I really do wish कि हम ये वाला argument ले सकते कि we milked them because you know I would be getting rich, but the elites, the political corrupt elites milked them because I got no money out of it. I did, however, जी जी get a lot of money अच्छा from the जी 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 मेरा ख्याल मैं है एक like सवाल पूछना चाह रहा था. we have gone back and forth. Let's go to the speaker जी. राना साहब सवाल पूछो. मैं ना मडूसा जी से पूछना चाह रहा था कि मडूसा जी आप इसका मुझे समझाइएगा कि अफगानिस्तान को जाना चाहिए तो किस बेस पे अपने कंट्री जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो किस बेस पे नहीं जाना चाहिए. ये देखो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, दैट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग के मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल रेन अवे फ्रॉम द वेरी रिजीम ऑफ तालिबान, ठीक है, वो इसी रिजीम से भागे हुए हैं. इट्स लाइक इजराइल टेक्स ओवर गाजा और इजिप्ट के कि नहीं गाजा के लोगों को वापस भेज दो, इवन दो कि वो इजराइल से ही भाग रहे हैं, ठीक है. That's how it goes. And secondly, the time frame. I have problem with the time. Please give them some, you know, कुछ लंबा टाइम दे दो ताकि वो अपने लिए कुछ कर तो सके ना, आगे पीछे कुछ कर सके, अपने डॉक्यूमेंट को कुछ कर सके, you know. This is just like, you know, they're just telling them कि तुम्हारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, just go back. We don't want you. चले let's go to Karan. Karan is here. Karan भाई please go ahead. आपकी ये थॉट्स हैं सारे जो एक रेफ्यूजी क्राइसिस हमारे यहाँ चल रहा है. It was there, but they are expelling them right now in a very weird way, and they are like poof, just vanish. That's what we want. तो उस पे क्या ओपिनियन है आपका? Thank you, buddy, and everyone. Hello, I would say it's very unfair. The reason they call Pakistan a banana republic, they're proving themselves. The reason is कि पूरी दुनिया में जब आप किसी को डिपोर्ट करते हैं, लाइक नो टेक्निकली जो टर्म यूज होती है, भेजना भूजना तो नहीं होता, द टर्म द इंटरनेशनली यूज इज डिपोर्ट. तो ये डेवलप कंट्रीज में इतना हार्ड काम होता है ना, किसी को आपको प्रूव करना पड़ता है इन द आई ऑफ लॉ कि ये इंडिविजुअल हैव नो राइट टू लिव हियर. और आपको पता है कि तेल निकल जाता है एक बंदे को प्रूव करने में, या किसी को भी पकड़ के कि उसको कोई राइट नहीं है यहाँ पे रहने का, या कोई वो बिलोंग नहीं करता. एंड जो ये हरकत कर रहे हैं हमारे यू नो एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की, आप जो कह लें, it proves this country have nothing to do with any law or any international any obligations to follow. मतलब कि जो इनका दिल करता है, ये गाजर मूली की तरह थोड़ा ना होता है. लाइक हु मेड दिस लॉ कि आप एक स्टेटमेंट दे दें, और पुलिस वाले की क्या अथॉरिटी है यार किसी बंदे को कि तू लीव द कंट्री? वो कोई जज है? वो कोर्ट है? वो कोई उसके पास क्या जजमेंट है कि हाँ जी कि आपको ये निकाला जा रहा है जी क्योंकि आप बिलोंग नहीं करते इस लैंड से? ये तो बनाना रिपब्लिक, दे प्रूविंग देमसेल्फ. तो और इसका क्या एग्जांपल होगा? ऐसे कोई कह ही नहीं सकती कोई गम आज तक किसी स्टेट ने ऐसा बोला कि जी आप ये सारे के सारे जो ये इस लोग है ना सब रेफ्यूजी हैं, इनको निकाल दो. ये कहाँ पे होता है? कहीं नहीं होता. यू हैव टू, अगर वो डिपोर्ट भी अगर आपने उनको करना है तो ईच एंड इंडिविजुअल उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा इन द आई ऑफ लॉ, कोर्ट में, कि हाँ जी ये बंदा यहाँ पे बिलोंग नहीं करता. किया किसी को नहीं किया. और बाकी सॉरी टू यार डोंट टेक इट ऑफेंस, बट बाकी आप पाकिस्तानियों से हर चीज के ऊपर ज्ञान मिल जाएगा आपको. मतलब कि इतने दानिश लोग हैं, हर चीज के ऊपर इनके पास ज्ञान होता है, पर जब अपनी बारी आती है तो टैंड टाइप होस. तो आप बताओ ब्रिटेन में अभी मैं जी गो अहेड प्लीज.
अब ब्रिटेन में जो चल रहा है कि वो जो इनको रवाडा भेजना, वो आज तक कोई फ्लाइट नहीं उड़ा सके यहाँ से। हालांकि वो सारे के सारे क्लेम, वो कहते हैं कि हम रिफ्यूज मांग रहे हैं, वो सारे क्लियर केसेस हैं। और यहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट है कि पता नहीं कोई किसी मिनिस्टर ने दी होगी या कोई आई डोंट नो हु इज बिहाइंड इट, गवर्नमेंट होगी। तो ऐसे थोड़ा होता है ये, तो दैट्स व्हाई दे प्रूविंग इट देमसेल्व्स वो बनाना रिपब्लिक है। यार मैं बताता हूँ कि किस वजह से हो रहा है, तो मेरी बात ही आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। इट द नहीं, लेकिन सेट एक्सपेल्शन सेट इज जो स्ट्रिक्टली फॉर एक कमेंट अनडॉक्यूमेंटेड पीपल। सेट, यही मैं इसी चीज पे एक कमेंट प्लीज, सॉरी। ये डिपोर्टेशन is something else. This is expulsion. This is actually expulsion of 1.7 million people. Deportation के laws होते हैं। करण भाई जो बात कर रहे हैं वो शायद यूकेबीए और यूके बॉर्डर एजेंसीज और इस तरह की बात कर रहे हैं। आप लाइक इंडिया में भी कुछ हालात इसी तरह ही हैं कि कोविड आया तो वो कहते हैं यार ये जो टाप के आए हुए हैं एक्सपल्शन है। जी नहीं, इंडिया में भी ये कोविड के टाइम पे हमने खबरें देखी थी, वी हैव रेड द न्यूज। इंडिया में भी इसी तरह होता रहा है, पाकिस्तान में भी, बट वी कांट कंपेयर इट टू द डिपोर्टेशन लॉज एंड द प्रोटेक्शन दैट कंट्री गिव्स इन। ठीक है, हम उसपे अब यूकेबीए के एक अपने लॉज हैं, आपकी यूएस बॉर्डर एजेंसीज के अपने लॉज हैं, और वो उसपे डिफरेंट कन्वेंशंस फॉलो करते हैं। बट इन साउथ एशिया वो कहीं भी नहीं होती, हम कहीं भी नहीं देख रहे, पाकिस्तान में भी नहीं देख रहे, इंडिया में भी नहीं देख रहे। मेरी आवाज आ रही है? फुरकान भाई एक मिनट यार, आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। अगर आप लोगों ने, क्या मेरी आवाज लगता कम आ रही है? चलो एनीवे, जी करण बोलेंगे, बोलो। देखो सिद्ध भाई, सॉरी फुरकान भाई, जो कोविड में हुआ ना, इट्स पीपल बीन डिस्प्लेस इन देयर ओन कंट्री। एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके गए, उनकी अपनी कंट्री में ही हुआ ये। वो डिपोर्टेशन नहीं होती उसको। इट्स लाइक वन ऑफ द केस इन मिलियंस टाइम, जैसे सुनामी आ गई, लाइक हैपन थिंग्स लाइक दैट। इंडिया में भी आपके भारत में हम ऐसे लाइक वी डोंट शाउट इट लाइक दिस। You won't even imagine how many Bangladeshi illegal citizens are living in India. You can't even imagine. Delhi is full of them, Bengal is full of them, and some part of Bangalore and Mumbai is full of them. पर कोई मजाल है कि कोई किसी को ऐसे कह दे कि जी आज के बाद ये बंदा बाहर, वो भी पकड़ते हैं। इंडिया में भी इनको पकड़ते हैं, फिर उनको कन्विंस करना पड़ता है कि जी ये बंदा यहाँ का नहीं है, तब वहां से डिपोर्ट होते हैं। नहीं तो ऐसे तो डिपोर्ट करना इस नेक्स्ट, मतलब ये तो कोई कहीं की भी ना सिर ना पैर ना तो। करण भाई, my main point was the practices followed there for deportation are not similar to what you described. जिस तरह in the West होता है, you have to prove, उसके departments हैं, उसके procedures हैं, they are not the same. It's like expulsion. It's not very transparent. इंडिया में आपको मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे नेपाल है ना, नेपाल के साथ का, नेपाल का तो इंडिया के साथ ओपन बॉर्डर है, भूटान का भी है। तो भूटानियंस और नेपालियंस तो कैन कम इन इंडिया एंड वर्क, नो इश्यूज इन दैट, एंड लिव लाइक देयर इज नो इश्यूज। एंड सम कंट्रीज लाइक श्रीलंका, अफगानिस्तान, वो लोग, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल आर इन इंडिया, दे आर रिफ्यूज। लाइक रिफ्यूज भी नहीं है, बांग्लादेशी तो रिफ्यूज है ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकते, बिकॉज देयर इज नो क्राइसिस इन बांग्लादेश। लॉट्स ऑफ बांग्लादेशी लिव्स इन इंडिया, बट इनको अगर इंडिया ने वापस भेजना भी है ना बांग्लादेश, तो प्रूव करना पड़ता है कि जी ये बंदा हमारा नहीं है। यार करण भाई, यहाँ पे एक छोटा सा मसला है कि आप एक उस बंदे की बात कर रहे हो who exists in a data. Actually, you know what, हम लोगों ने लॉज खेलना है ना, आप प्रूव करें कि एक भी अफगान जो सा है ना वो डिपोर्ट किया गया इन द कोर्ट। यार मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ कर रहा। Ted, I would like to remind you of something. ठीक है, 2019 में इंडिया के अंदर एक लॉ आया था, सिटीजन अमेंडमेंट लॉ, जिसके बारे में एक ही साथ उन्होंने वो कश्मीर का किया था, और दूसरा उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग प्रूव करें कि वो इंडियन सिटीजनशिप रखते हैं, स्पेशली उसके अंदर मुस्लिम्स फ्रॉम अ सर्टेन रीजन, असम और जगहों के मुस्लिम्स उस चीज़ के ऊपर थे।
Now all the people who were adamant about that thing कि इन लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए, ये तो यहीं के हैं, this is no different to that. वहां पे भी वो जो लोग शायद बहुत सारे आए हुए थे, वो एक सेकंड सुन लो उस चीज को। मैंने 3-4 साल बहुत देर बहुत फोरम्स के ऊपर डिस्प्यूट किया। आई वाज अगेंस्ट इंडियाज पॉलिसी। जब वेस्ट इंडियंस को रिमूव किया जा रहा था, आई वाज अगेंस्ट ब्रिटेन्स पॉलिसी। इसी तरीके से जो एडवोकेट्स हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं, ये तो सारे ये हैं, हम तो अपनी सिक्योरिटी और बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन जब आपको माइग्रेंट वर्कर उनका चाहिए होता है, तब आपको नहीं ये नजर आता। जब वो 3-3 जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं, तब नहीं आपको ये नजर आता। जिस टाइम के ऊपर आपने स्मगलिंग रोकनी है और वो चीजें करनी है, तो ये लोग थोड़ी वो कर रहे होते हैं। इसके अंदर तो 50% से ज्यादा तो औरतें हैं, वो स्मगलिंग कर रही हैं, जो कभी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से शायद बाहर ही नहीं गई। मुझे आप ये बताएं कि आपने कहा है कि डॉक्यूमेंटेड लोगों को भी वो भेज रहे हैं, तो जो सब मैंने पढ़ा है और जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, the people that have some sort of paper which proves their existence, they are roaming free. यार यहाँ पे बहुत सारे, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे बहुत सारे, देखो जो आवाज आ मैं रही है? प्रैक्टिकली देख रहा हूँ ना। यार फिर भी यार एक यार मिनट यार, प्रैक्टिकली मैं देखने I की just बात want to नहीं add है। something यहाँ into पे Shadi. आपको एक और चीज अंडरस्टैंड करने की I जरूरत है just कि want to बहुत add सारे, something यार, please Shadi. यार just 1 second, just 1 second, and then I promise I'll be very short. देखो बात ये है कि बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर भी जो सिटीजन अमेंडमेंट लॉ के ऊपर बात कर रहे थे और जो उसके अंदर थे, उनमें बहुत सारे लोग इस तरह के थे जो जिन्होंने कभी जाके पेपर वर्क कंप्लीट ही नहीं किया। ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दैट। दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लाइक, दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव। ठीक है, जब तक उनको जरूरत नहीं पड़ती, जब तक उन्हें ट्रैवल नहीं करना, शनाख्ती कार्ड तो उन सब के पास है। एवरीवन नोज व्हाट देयर स्टेटस इज। उसके अंदर कोई बूढ़ा बुजुर्ग या किसी का 80 साल के बंदे को भेजते हुए नहीं है शर्म आनी चाहिए यार, जिसके बच्चे सारे पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, कि उसके कि पास पेपर शिनाख्ती वर्क कार्ड उनके पास किसी चीज का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शिनाख्ती कार्ड जिसके पास है उसको तो कोई हाथ जिनके लगा पास ही नहीं नहीं है, सकता। उनके बच्चों के पास तो है ना, उनको रजिस्ट्रेशन का भी जिनके मौका नहीं मिल रहा। ना, दैट इज यार नॉट ट्रू सेठ, शायद। पता है क्या, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आई एम सॉरी सेठ, आई विल हैव टू करेक्ट यू हियर. Majority of the Afghan who are undocumented who are living in Pakistan have a fake identity card. Now go figure कि उन लोग को fake identity card कहाँ से मिला है? आपकी अथॉरिटीज ने उनको एंड सेकेंडली बैकडोर वो से जो इशू फेक किया, ये क्या आइडेंटिटी कार्ड मसला है है? वो लीगल है। बात ये है कि वो किसी ने ऐसे ही नहीं नादरा से बना लिया। दे वर नॉट सपोज टू हैव दैट, बल्कि लॉ बनना चाहिए था कि जो लोग यहाँ पे पैदा हुए, दे शुड हैव बीन ग्रांटेड पाकिस्तानी सिटीजनशिप। Secondly, those people who have spent over a certain amount of time और उनकी contribution और चीजें देख के, especially majority of these people are business oriented. अगर तुम इस 1.7 मिलियन लोगों की जिनको भेजने की बात कर रहे हो, इनकी मेजोरिटी के अंदर वर्किंग एडल्ट्स की जो प्रोपोर्शन है, अगर आप उसको निकालते हो, तो they're mostly entrepreneurs and they're working in I will Pakistani businesses. agree with you on that. हाँ I can तो no, no, उनको I can इज्जत agree with देके you on ड्यूल that. नेशनैलिटी देके फारिग करना चाहिए, rather than नहीं send नहीं, them to a country जिसके बारे में अलिफ बे नहीं उन्हें पता, वो कभी गए ही नहीं। आप मुझे ये अच्छा, और दूसरी बता बात रहे हैं सेठ, आई शादी जस्ट के एक सेकंड हमारे पास सेठ ये सेठ प्रोविजन सेठ भी है ही नहीं थी क्या? डिड वी मेरी नॉट हैव मेरी दोस बात सुनो प्रोविजंस? एक सेकंड सेठ, तुम्हें पता है अभी मैं एक पढ़ रही थी, कोई मुनीजा काकर है, एक लॉयर है, शी इज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो जो है उन डिटेंशन सेंटर में गई थी जो ये लोगों ने अफगानियों के लिए बनाए हैं। वहां पे देयर आर एक्चुअली अफगान्स हु आर डॉक्यूमेंटेड एंड हु हैव प्रूफ ऑफ देयर डॉक्यूमेंटेशन, बट दे आर नॉट लेटिंग देम गो. In fact, they have told them that documented or undocumented doesn't make much difference to us. Blatant corruption. No, in that case that is blatant corruption. Really? On the government part, yes. यार I just want to add something if you don't mind, क्योंकि मैं स्पेशली आया हूँ, फुरकान भाई ने No, बुलाया.
यार ये भी आप देखें ना कि जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो स्मगलिंग या ये वो, कितनी कन्विक्शन है आपकी कोर्ट की? क्या डेटा है आपके पास? कितने आपने कन्विक्ट किए आज तक? मेरी आर्ग्यूमेंट मैं आर्ग्यूमेंट इस चीज के ऊपर कर ही नहीं रहा हूँ मेरी नहीं, मेन वो पता आर्ग्यूमेंट तो इसके लगे ऊपर ना नहीं कि है। आप यहाँ पे पता लगे मेरी मेन 50,000 आर्ग्यूमेंट बंदा है आपने That's a कन्विक्ट कर दिया। लेट देम बी that's a very valid point जो करण ने नहीं सिर्फ जो करण भाई ने पॉइंट उठाया है, that is a very valid argument, क्योंकि आप परसेप्शन की बात कर रहे हो कि you think and it's a stereotype कि Afghanis are involved in क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, बट ओवरऑल आप कन्विक्शन से ही ये डाटा निकाल के असर्ट कर सकते हो कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड दैट्स अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट। ये तो बाकी तो अगर परसेप्शन तो है, मैं आप जो मर्जी ये नहीं हूँ मुझसे यहाँ पे बैठ के। सॉरी, नहीं थैंक नहीं यू। अगर तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि उनमें से कितने लोग जो से स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, हम इनडायरेक्टली भी कर लें, देन इट्स गोइंग टू बी हार्डली 10%। इनडायरेक्टली को इंक्लूड भी कर लें तो, नहीं बट सिर दैट्स साहब, नॉट द ऐसे नहीं बेसिक होता ना। आर्गुमेंट दैट आई एम ट्राइंग देखो टू। देखो देखो सिर साहब, देखो जब आपने आप इतनी बड़ा आपने कदम उठाया है, देन यू मस्ट हैव सम स्ट्रॉन्ग डेटा टू सपोर्ट इट। तो आपके सर कहने से जी थोड़ा अगर कुछ होगा। डेटा होगा तो नहीं, अगर तो करण भाई डेटा होगा ना, ऑफिशियल डेटा अगर कोई होगा तो आधे से ज्यादा तो फौजी पकड़े जाएंगे। क्या कर फिर रहे वो हैं आप? देखो ना, फिर this is what you making a wrong argument here, not you basically, No, no, not no. especially you। I am completely against नहीं, मैं those. आपकी Even बात नहीं those. कर रहा ना। मैं देखो उसको इसको देखो, आपको ये भी हो सकता था कि लेट्स से आई एग्री विद योर पॉइंट कि वो लोग ऐसे काम करते हैं। अगर आपने 5-10 लोग 20 लोग पकड़ के कन्विक्ट कर दिए होते तो शायद ये भी बंद हो जाता। पीपल वुड हैव लर्न द लेसन। आप एक ऐसे ही पूरी पूरी दुनिया में आप ऐसे ही एक होता है मेरे अफगानी को भाई। I completely agree with you on that point. क्योंकि आप एक अफगानी को डिटेन करेंगे ना, आपको साथ में 10 सिपाटे और एक अफसर भी, एक और दो अफसर जो है वो भी अंदर डालना पड़ेगा। एंड आई वुड बी 100% इन फेवर ऑफ दैट। आपको क्या लगता है जो स्मगलिंग होती है तो पाक फौज के जरी जवानों को पता नहीं होता? पाक फौज के जरी जवानों को सब कुछ पता होता है, उनकी हर जगह पे पहुंच है। मसला ये नहीं है, मैं सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं कि ये पीपल लोग जो हैं ये डॉक्यूमेंट हो सकते थे और अभी भी हो सकते हैं। मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा कि किस तरीके से ये डिपोर्टेशन हो रही है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आप लोग इस चीज की सीरियसनेस को नहीं, ले देखो ही वो नहीं तो रहे हैं। स्टेट के ऊपर, आप देखो वो तो स्टेट के ऊपर अब स्टेट के ऊपर यार देखो ना, देन दैट इज डिपेंड कर। अब देखो, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 2008 के अंदर यूनाइटेड किंगडम डिसाइडेड कि इतने लोग यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड हैं, अनलिस्टेड हैं, अगर वो 14 साल से यूके के अंदर रह रहे हैं या 14 साल से ज्यादा से रह रहे हैं, दे शुड कम टू द अथॉरिटीज, रिवील देमसेल्व्स, एंड दे विल बी प्रोवाइडेड द पेपर वर्क टू रिमेन विद इन द यूके। उन्होंने ये तो नहीं किया कि जो अच्छा मुझे रेफ्यूजीज आए थे उनको निकाल के बाहर फेंक दें। उन्होंने कहा कि इवन जो अच्छा अनलिस्टेड हैं, अब अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन का मसला था तो आप उनको वापस भेजने की बजाय यू शुड आस्क देम टू कम एंड गेट डॉक्यूमेंटेड rather than just शाहजी like illegally throwing them out of the country. That is insane. शाहजी कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। यूके के अंदर जो लोग अनलिस्टेड थे, दे एग्जिस्टेड ऑन सम पेपर। 14 साल से वो वहां पे रह रहे हैं, वो ये No, चीज they साबित did कर not सकते हैं exist ना। on no paper. They were तो refugees. okay, how are they going to prove that they were existing in UK for the past 14 years? यार We Because are देखो talking जब मेरे वो about भाई, एज रेफ्यूजी आते हैं तो वो एक पॉइंट के शाहजी ऊपर ये आपको सबसे छेड़े पहले, हैं। नहीं ना नहीं, छेड़ नहीं एक रहे सेकंड, यार। जब वो जब बात पता एक क्या सेकंड है रुको यार, नहीं नहीं, राना। वो शादी। तो सिटीजन है ना। तो भाई मेरे देखो, देखो जो राना, आपका बेसिक आर्गुमेंट ही है ना, उसी यार पे सब करण, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन वन थिंग है। टू हिम। जिस तरह अफगान रेफ्यूजी पाकिस्तान आए थे तो उनको लिस्ट किया था ना आपने अथॉरिटीज से कि ये रेफ्यूजी आया है,
इसी तरह गायब होने से पहले अथॉरिटी को जब वो हीथ्रो या गैटविक पे बंदा लैंड करता है उन्हें पता लग जाता है कि इसकी एंट्री कब हुई थी, फिर वो गायब होता है। तो इट इज ऑलवेज डॉक्यूमेंटेड कि कौन बंदा किस टाइम पे आया और वो कब से गायब हो गया। एग्जैक्टली द सेम थिंग, नो डिफरेंस। हाँ, मसला ये है ना कि ऐसा यहाँ इस केस में मेजॉरिटी के अंदर नहीं है ना, मसला ये है। यार इनका तो ये तो फिर और अच्छी बात है, आपके पास प्रूफ क्या है फिर वो अफगानी है? इंग्लैंड के पास तो प्रूफ भी था कि वो बाहर से रेफ्यूजीज आए हुए थे और वो इतने सालों से हैं। अगर आपके पास तो यही प्रूफ नहीं है तो उनको पाकिस्तानी कंसिडर करो फिर। यही तो मसला है ना अगर आपको शादी। ये भी नहीं पता कि आप अगर आपको ये भी नहीं पता वो कब आए थे, उनकी फैमिली कब आई थी, देन दे आर पाकिस्तानीज, व्हाई आर यू कॉलिंग देम अफगानीज? Can I add something if you don't mind? ऑन Like, व्हाट ग्राउंड्स? फिर तो वो हो ही अच्छा सिद्ध भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने सालों से ये यहाँ पे अगवानी भाई रह रहे हैं ना, इन्होंने मेरे ख्याल से 40 लाख में से 20 लाख लोगों ने तो यहाँ पे शादियां कर ली हैं। यार जी मैं जी, सिर्फ करण गो अहेड, करण गो अहेड। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की देता हूँ कि जब 1971 हुआ ना, लाइक व्हेन बांग्लादेश थिंग हैपन, तो इंडिया, वो जो जो जितने भी बंगाली इंडिया आए 16 दिसंबर 1971 से पहले, जो बंगाली भारत इंडिया आए उनको रिफ्यूज दे दिया गया क्योंकि दे वर इन क्राइसिस ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब वो एंटर हुए, कि जब आप ये आर्गुमेंट देते हो ना, अफगान रिफ्यूजी, सो यू एक्सेप्टिंग देम कि दे रिफ्यूज, तो वो वाज इट लाइक नो दे केम फॉर द शेल्टर। आई अब वुड अग्री विद यू ऑन ऑल ऑफ दैट। उसके बाद आपका, अब देखो सिद्ध भाई, जो रियल वर्ल्ड होता है ना, उसमें तो अगर आप हो ना, मतलब कि लेट्स से समवेयर इन फर्स्ट वर्ल्ड, तो आप तो ये प्रूव ही नहीं कर सकते कि बंदा अफगानी है। कर आपके ऊपर डिपेंड, ऑल बर्डन एट यू, कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बंदा अफगानी नहीं है। वो पश्तू बोलने से भी नहीं, कोई बंदा मसला, अफगानी नहीं बन जाता। मैं बोल सकता आई हूँ कंप्लीटली एग्री विद यू, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि उसका प्रूव करना कि वो अफगानी भी है ये भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। उसका प्रूव करना कि वो एग्जिस्ट करता है ये उससे ज्यादा मुश्किल है। आप ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने उनको एक्सपेल किया। और जो आप कह रहे हैं ना रेफ्यूजीज आए हैं, जो रेफ्यूजीज आए हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं, उनको अगर एक्सपेल कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड लोगों को, आई विल स्पीक अगेंस्ट इट एवरी स्टेप ऑफ द वे। अगर आप लेकिन मसला ये है कि ऑन ग्राउंड जो से जिन लोगों को मेजोरिटी जो से लोग एक्सपेल हो रहे हैं, दे डोंट एग्जिस्ट ऑन एनी पेपर। फैमिली का, मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि फैमिली का एक बंदे के, अब न ये बहुत ही सस्पिशियस हरकत होती है कि फैमिली का एक बंदा जो है उसकी हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड है और बाकी फैमिली जो है वो किसी पेपर पे एग्जिस्ट नहीं करती है। पाकिस्तान के अंदर ड्यूटी के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बंदा है जो कि अफगानी हो तो वो पाकिस्तानी नहीं। आई थिंक you're confused over here। ऐसा कोई नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो पाकिस्तान के अंदर एंट्री लेके आए, they claimed refugee status and they are documented in the sense that they are refugees in Pakistan। The only fault they made is कि एक बंदा उसके अंदर से काम चलाने के लिए जो काम करता है उसने जाके डॉक्यूमेंटेशन ले ली, बाकी बेचारे बुजुर्गों ने या बच्चों, अब बच्चों की क्या डॉक्यूमेंटेशन लेंगे आप? बच्चे की क्या डॉक्यूमेंटेशन? 18 साल की एज तक तो आप नादरा कार्ड नहीं देते, ठीक है, उसकी क्या ही डॉक्यूमेंटेशन होगी? उसकी पैदाइश का बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर आप नेशनैलिटी लिखेंगे तो क्या नेशनैलिटी लिखेंगे? मेजॉरिटी डोंट इवन गो एंड गेट अ बर्थ सर्टिफिकेट स्टिल। That applies to even local Pakistani citizens. Yeah, एक second. I want to point something out to Sid. Sid, there are actually people in tribal इलाके. There are actually people who do not have identity card, who do not have passport, who do not have any identity card. Majority केस वो जो cards हैं वो अभी recently ज़रब अज़ब के बाद बने हैं. तो अब उनको भी निकाल दो फिर पाकिस्तान से. नो, आई एग्री, ये प्रॉब्लम है। मसला ये है कि अगर आप ये पूछते हैं कि इन दिनों में ये सारा कुछ इतने ड्रास्टिक स्टेप्स क्यों लिए गए, द आंसर इज डॉलर्स।
जिस तरीके से स्टेप Yeah, the लिए जा answer रहे is हैं, very no, 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 the answer is very simple. It was a petty move by Pakistan because of the whole TTP situation with Taliban. ठीक है, no, उनके कराची I पोर्ट would पीछे apply से it, रुकी हुई no, है, no, उनके बंदे I को would वापस not, भेज, it's just that, you know. नहीं, मैं एम्फेसिस इसके ऊपर नहीं रखूंगा। प्रैक्टिकली मैं एम्फेसिस रखूंगा डॉलर्स के ऊपर, जो कि पकड़े भी गए हैं। इसके तरीकेकार बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते थे, बहुत ज्यादा बेहतर होने चाहिए थे। टाइम फ्रेम जो है बहुत अनरीजनेबल है। आई वुड एग्री ऑन दैट। इतनी सर्दी में वहां पे -4 टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा, सोने पे सुहागा ये कि उन पे फिर 840 के 30, आई एम नॉट श्योर, $830 वो फाइन भी लगा लिया। मतलब जाने तो दो ना भाई साहब, कह भी रहे हो कि घर से भी निकलो लेकिन जाने के पैसे भी दो। अच्छा, मजेदारी वाली बात यह है मेड्यूसा, जो से मेरे लड़के वहां पे गए हैं ना, उनकी जो वहां से यहाँ पे आने की फीस है वो भी यही है। तकरीबन 3 महीने बाद वापस आ रहे हैं। मेरे 4 लड़के गए हैं। सो द राइट वे डज एग्जिस्ट, इट्स नॉट लाइक इट डज नॉट एग्जिस्ट, यार इट डज। Well, I you mean, keep the saying US and कि the UK आपके is giving them एक सेकंड, ये बहुत वो इम्पोर्टेंट entry. पार्ट है फॉर Uh, other reasons. We don't want to be done for terrorism or anything else. आपके कौन से लड़के और किन लोगों की आप बात कर रहे हैं? तो मैं वर्कर्स की आप बात कौन कर रहा हूँ। आप जरा ये एक्सप्लेन करते हैं, आप किसी सस्पिशियस नहीं, एक्टिविटीज के अंदर नहीं है? मेरे नहीं, लड़के नहीं, बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं, नहीं, आप बताएं वो कौन है? नहीं, मेरी अपना मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, फुटबॉल का काम है। दे आर माय लेबरर। majority of my workforce is from बन्नू और पेशावर, एंड वहाँ पे जो लोग होते हैं वो Afghanistan. अफगानिस्तान और ये एरिया जो है वो क्रॉस, उनका काफ़ी इंटरमिंगलिंग है। तो जो उनसे अफगानी साइड के कार्ड्स रखते थे, दे हैड टू गो बैक एंड कम बैक ऑफिशिएटेड, सो दे हैड टू गो। ये एक प्रोसेस हुआ है जिसकी मैं बात करूं। जो 4 मेरे लेबर वर्क फोर्स है उनकी मैं बात कर रहा था। देयर इज नथिंग सस्पिशियस गोइंग ऑन। आई एम फ्रॉम सियालकोट, so it's quite So open. yeah, And the that's fact that they that's thought that they're going to mess up their lives, US and UK have already, given out their statement. The US is taking 25,000 Afghan refugees, and UK is taking 20,000 Afghan refugees. I mean, at this point, तो वो जो अफगान refugees जो जा रहे हैं ना, वो तो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने हमें निकाल दिया, बेहतर जगह पे जा रहे हैं। In Pakistan, they were only surviving. yeah, No, they I are think quite good एक businessmen. चीज एक चीज क्योंकि we have been going on with this argument for around 50 minutes. मैं impact जानना चाहूंगा on this policy जो कि पाकिस्तान ने implement की, पाकिस्तान की interim government, not elected government, जो कि एक interim government है, उसने एक decision लिया कि हम इन्हें expel कर देंगे। उसका I अफगानिस्तान think पे क्या impact आएगा? ठीक है, we need to have a very clear view of the future जो कि जो उनके ऊपर impact आएगा, और बाकी जो internationally इस पे critique हो रही है, उसका impact पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे किस तरह का आएगा, and why? जो question जो initially I think it was Shah who raised the question. Vic, can you mute yourself for a moment? आपकी जरा background noise आ रही थी। फिर जब आपके पास आएंगे then you can unmute and then speak. And thank you for joining the panel. मेरा ख्याल है कि जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा इस चीज का, इस डिसीजन का, और अफगानिस्तान पे क्या आएगा if 1.7 million refugees go into Afghanistan, क्योंकि they have a population of around 40 million I guess, and 1.7 would be around, let's do mental maths and say कि 5% उनकी पॉपुलेशन का उधर जा रहा है, उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लो। I think it has mostly to do with harsh winters.
वहाँ पे जो मेरे कॉन्टेक्ट के साथ डिस्कशन हो रही है, मैंने उनसे पूछा था कि भाई वहाँ पे कैसे हालात है और करेंसी और इकोनॉमी का क्या मामला है। उन्होंने कहा कि भाई अफगानी जो है वो तो पाकिस्तानी रुपीस से ज़्यादा ताकतवर है। मैंने कहा यार फिर तुम लोग जो है यहाँ पे वापस क्यों आओगे? उन्होंने कहा काम नहीं है। The problem in Afghanistan is that even though their currency is getting stronger, there is no work available, which kind of is weird. Uh, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अफगानिस्तान को होगा। They'll have to make jobs if they want to bear that burden. Now they do want to make jobs and they should be making jobs considering they are going through rebuilding and re-infrastructuring of the whole country. Uh, but that is going to make a very huge pressure inside Afghanistan. Uh, when the Taliban government came in and the Ashraf Ghani government was thrown out, very rightfully so. Uh, One of the biggest things that they were trying to handle was drug addiction. So I think it will somehow help the Afghan nation in viable workforce if they were having that problem. But from what I heard uh, through on ground sources, work is not readily available, which is a strange occurrence. I do not understand why that is. Uh, ये एक प्रॉब्लम है जो कि वहाँ पे बिल्डअप होगा. Yeah, that's my take on it. Yeah, I just want to add that Pashtun is a resilient calm, and they will get through this as well. Most probably, even if they go there, they will get through this. But how it's going to affect Pakistan in जो भी था, मतलब पहले तालिबान के साथ फिर भी हमारा बड़ा cordial relationship था, ठीक है, not really as good as we were expecting it to be, as Pakistani authorities were expecting it to be, but it was generally good. But how this whole situation, once this is done and dusted, and there's nothing else, there's no more moves for Pakistan, right? Then we will see कि फिर उसके बाद Taliban क्या action लेते हैं. And I think this it's not going to be good. I think we're just making new enemies every day. I think majority of them are just going to come back this time with papers. That's I what I don't think. think it's simply even implementable what the Pakistani government is trying to do right now, and elected Agreed. or interim does not make a difference as far as I'm concerned. I know Furqan they keep saying that, like I pointed out that consecutive governments have tried to do that, they've failed. This one will be no different because the people you're talking about are heavily involved in Pakistan. They're well integrated, and ये जो एक क्लेम आ रही है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से हम इन लोगों को निकाल रहे हैं यहाँ से, इसके अंदर भी आप एसोसिएशन देख लें, टीटीपी के अंदर कितने अफगान रेफ्यूजी थे हु वर द कॉज ऑफ दोज attacks which have occurred in Pakistan, and you'll find that majority of those attacks were carried out either by local Pakistani people or people who came from Afghanistan and joined those areas. It was never this group of people. So again, ये एक बड़ी contrasting बात है. This I think why Pakistan is doing that और इसका impact क्या आएगा पाकिस्तान के ऊपर. They're trying to show to the current Afghan government that we can also do something, and we can put a weight on you, और इन लोगों को हम अंदर भेज सकते हैं. You won't know how to deal with them. अभी तक तो उन्होंने मैनेजमेंट की है ना. Will they be able to tackle these people if a minority of them are sent back? How are they going to deal with them? The entire world will be watching, and that is what Pakistan is trying to do. They're trying to make these people, and obviously the Taliban don't want these people either, because these are majority of people who have an interior
not an agreement, opinion or political background or lifestyle which is supported by Taliban. So they won't exactly be welcomed by Taliban. So it's putting civilians, whether you consider them Pakistani or Afghan at this stage, at risk, because you don't know what is going to happen to them. Forget survival and everything else. This is going to be a cause of huge conflict, and the impact on Pakistan or not, but there will be an impact on those who are sent back, not just in trying to remain in Pakistan. If they are sent there, what will happen to them is another concern. Thank you, Shaji. I would go straight to Vic Singh. He has been waiting for some time. Vic, आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पे, और जो आपने कुछ कहना है, प्लीज गो अहेड। जी जी, मैं तो आपकी सभी को पहले नमस्ते, सलाम, और आप खुश रहें, एंजॉय करें। मैं तो थैंक एक ही यू। बात कहना चाहता हूँ कि सर, ये जो पाकिस्तान का भी क्राइसिस आई है अफगान को डिपोर्ट करने की, तो पाकिस्तान पाकिस्तान अभी वो अपने आप के ऊपर वो सह सकता है उसके इतने ही अमाउंट में जो लोग हैं, कोई फोन में रह रहा है, उसको डिपोर्ट कर दे एकदम से ऑन द स्पॉट, टुडे टू मॉर्निंग, अडॉप्ट कर सकता है वो इस पॉलिसी को? आई हैव जस्ट क्वेश्चन टू मिस्टर सिद्ध। सिद्ध हमारे भाई पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, या आप में से कोई जवाब दे सकता तो बोले भाई, विदाउट एनी आप अपने क्वेश्चन को जरा रिफ्रेज करें, मुझे प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आया। जी सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पाकिस्तान को उसी इस पॉलिसी को डिफेंड कर रहे हैं, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर यही पॉलिसी एकदम से यूरोप, अमेरिका, कनाडा या कोई और मुल्क भी आपके ऊपर एकदम से फेंक दे कि आज से हम इन लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को वापस भेज रहे हैं, डू यू एग्री विद दैट विदाउट एनी कंफर्मेशन? पहली तो बात विक भाई, मैं पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसिज्म दोनों साइडों पे कर रहा हूँ। पॉलिसी के काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ। पैनल पे अगर कोई बंदा पर्सनली अफेक्ट हुआ है इस पॉलिसी से, वो इस वक्त मैं हूँ। और जहाँ तक बात है जो मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन की, अगर अमेरिका और बरतानिया के अंदर भी वो इस चीज़ के ऊपर एडमेंट होते हैं कि जो भी यहाँ पे बंदा है वो कम से कम डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, आई वुड एग्री विद दैट। डेपोर्टेशन के ऊपर ना मैं इनके लिए एग्री कर रहा हूँ, उनके लिए आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक देम एनीवे, सो वो उनका यूरोप और अमेरिका का खुद का मसला है, मेरी तरफ से वो करें। जो यहाँ पे अफगानी है उनकी डेपोर्टेशन के लिए मैं अग्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं एडमेंट हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ से डिपोर्ट हो, बिकॉज आई पर्सनली गेन कि वो यहाँ पे हैं। मेरे पास एक हार्ड वर्किंग और एफिशिएंट और ऑनेस्ट वर्क फोर्स आती है। मेरी 90% जो सी वर्क फोर्स है बाय डिज़ाइन या तो अफगानी रेफ्यूजीज हैं या पश्तून लोग हैं, बिकॉज आई ट्रस्ट देम मोर कंपेयर टू वेयर आई एम। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मैं फिर भी एडमेंट हूँ, मैं डिपोर्टेशन के ऊपर एग्रीएबल नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि दे शुड एग्जिस्ट ऑन पेपर। हम देखो डॉक्यूमेंटेशन के साथ मैं एक बात करना चाहता हूँ। 1 second fixing डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर दे शुड वर्क एंड प्रोवाइड देम डॉक्यूमेंटेशन, वो प्रोसेस स्टार्ट करें, nobody would have an issue with that, so that's not even a contention. Carry on fixing. सॉरी सर, मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का जो हिसाब था डॉक्यूमेंटेशन का, सर आप सभी एग्री होंगे या नहीं एग्री होंगे, जो कुछ टाइम से पहले निकले हैं इंडिया, पाकिस्तान, सबको, बांग्लादेश, नेपाल, जहां से भी, क्या आपको कोई असल में प्रॉब्लम थी कि आपने यहाँ पे असाइलम लिया यूरोप, अमेरिका, कनाडा और किसी मुल्कों में?
कितने लोग वहां पे 100% एग्री होते हैं कि हमने फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन पेश किया, उसके ऊपर असाइलम लिया? सिद्ध साहब, नहीं लिया, या आप मुझे बता दें कि लिया। अगर नहीं लिया तो मैं सर आपको मैं प्रूफ भी दूंगा कि लिया। बहुत हमसे 90% जो पॉपुलेशन है उन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट के ऊपर यहाँ पे जनरेशन बाय जनरेशन रह रहे हैं, लेकिन उसको फॉल्स को भी इन्होंने एग्री किया। ओके, डजंट मैटर, इट्स नॉट अ मैटर। ओके, इफ यू आर ऑनेस्ट, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू फॉर योर कंट्री, वी एक्सेप्ट यू, नथिंग एल्स। तो सर ये अभी ये कल को सब, मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल डिसएग्री करूंगा, हत्ता के वो हमारे मेरे बेसिक पाकिस्तान से गए हों फॉल्स तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। सर फिर मैं तो आपको उनके पता कि 99% पाकिस्तानी को आपको वापस बुलाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई लेफ्ट विंग आ गया ना तो वो उखाड़ के रख देंगे। तो फिर आप एग्री, आप फिर पूरे वर्ल्ड में फिर वो चीखें निकलेंगी, रसिस्मस, मैं तो इस्लामोफोबिया, भाई फलाना ढिमकाना। सर मैं आपको नहीं रियल नहीं बात नहीं, कर रहा हूँ, मैं ये आपको पूरा एक्सेप्ट वर्ल्ड करना पड़ेगा सर। आप नहीं, वो पूरा वर्ल्ड वो चीखें मारेगा और मैं बड़ी खुशी से वो चीखें सुनूंगा। फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन, गलत रास्ते को मैं कभी भी इंडोर्स नहीं करूंगा। सीधे तरीके से काम करें। ये लोग अगर वहां पे जाके आई डोंट नो कि भी वो अगर तो वहां की गवर्नमेंट कोई लीवे दे रही है और फिर भी वो फॉल्स तरीके से रह रहे हैं, मैं किस तरीके से ऐसे लोगों के साथ एग्री कर सकता हूँ? Yeah, वो I इस्लाम मुसलमान understand हो, what मेरी you're तरफ से saying, and एथियस्ट I हो। agree. I agree with what you're saying कि उनको लीगलाइज करना चाहिए, लेकिन पॉलिसी डेपोटेशन की बजाय लीगलाइजेशन की होनी चाहिए थी ना। You understand? उनको इस ऑप्शन बात के देनी ऊपर चाहिए नो थी आई इन्हें। They एग्री could विद have basically gone out and जिस तरह विंड रश जनरेशन जो वेस्ट इंडियन थी, उनको ऑप्शन दिया गया फाइनली। When that यहाँ happened, पे तो बड़ा मैं मजा एग्री बन गया था। करूंगा। नहीं, सर यहाँ अगर पे तो यही मैं बात एग्री यूरोप, करूंगा। यही बात अमेरिका, A much यूरोप या better way was a इजराइल करे। better policy of document. सिर्फ साहब मैं थोड़ा एक बात कर दूं। अगर यही बात अमेरिका, यूरोप या कोई और कंट्री करे तो आप बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश है। तो सर अफगानी कौन है? वो तो आपसे थोड़ा अच्छे, मैं पंजाबी हूँ और मैं पंजाब के इंडिया पंजाब के और पाकिस्तानी पंजाब के लोगों से बहुत मिला घुला हूँ। मेरे को लगता है कि वो कम से कम ईमानदार हैं एक चीज के ऊपर। वो मजहब को उस हिसाब से नहीं रखते जैसे आप हमारे पंजाब, पाकिस्तान पंजाब के लोग मजहब को इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं रखते वहां से। तो सर वो तो फिर थोड़े से मेरे लिए 1% अच्छे हुए ना। चाहे वो उनको जाहिर ही बोल दो कि वो उनको जहालत है, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है किसी भी चीज में, लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा 1% मार्जिन देता हूं। तो सर फिर उनका क्या कसूर है? नहीं तो कल को यूट्यूब के ऊपर या पंजाबी भाई है, मैं इंस्टाग्राम के पंजाबी ऊपर सभी वो जवाब दे चलेंगी, देना सब कुछ चलेगा। भाई जान। नहीं नहीं विक भाजी, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ यार ਲੈ ਕੇ ਆਓ, बाकियों ਅਸੀਂ को भी ਸਿੱਧੇ ਕਰ समझना ਦਿੰਨੇ। है कि आप क्या बोल रहे हैं। आप जरा उर्दू के अंदर आ जाएं सॉरी यार, सॉरी, ये चलिए मैं उर्दू में कर देता हूँ। मैं शुक्रिया। उर्दू में वापस आ जाता हूँ। अगर तो यहाँ के लोग इस तरह है कि उनको गलत काम के लिए ही मजहब याद आता है, तो फिर मुझे इस तरह के लोगों के इस्लाम की बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। अंग्रेज आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके गलत कागज हैं, तो हम आपके गलत कागज भी सही कर देते हैं, वो फिर भी नहीं करवाते हैं। मैं तो इन लोगों की कभी भी हमायत नहीं करूंगा। यानी कि मसला ये नहीं है कि वो सही काम कर नहीं सकते, गलत की आदत पड़ गई है उनको, तो मैं उनकी हिमायत किस तरह करूं? मेरी तरफ से निकालें उनको, गंद साफ करें, कम से कम बदनामी तो ना हो हमारी। अच्छा, मैं यहाँ पे आई विल कम एट दिस पॉइंट। सिड, ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि उनको गलत की आदत हो गई, ऐसे उन लोगों ने परवाह नहीं की कि वो डॉक्यूमेंटेशन करे, ठीक है। ये जो 20
कि 40 साल पाकिस्तान ने इन रिफ्यूजीज के नाम पे पैसे लिए हैं, इन रिफ्यूजीज के नाम पे नाम बनाए कि ओहो हो देखो हम कितने अच्छे हैं, हमने इनको पनाह दी है अपने मुल्क में, ठीक है। तब तुम्हें ये पुट्ठे काम नहीं नजर आते? तब तुम ये नहीं कहते कि उन पुट्ठे कामों से हमारी गवर्नमेंट क्यों फायदे निकाल रही है? तब तो दे वर ऑल गुड, दे वर ऑल फाइन। ओ अफगान रिफ्यूजीज बेचारे तालिबानों से भागे हो, वही तालिबान जिसकी हुकूमत को हम लोग प्रेस कर रहे थे कि ओहो हो अफगानिस्तान में जो है। अच्छा अपनी सिस्टर, आपने ये बहुत बात थोड़ी एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर से थोड़ी सी बात थोड़ी वो हल्की कर दी है। मैं अभी सिद्ध भाई को समझाता हूँ कि प्रॉब्लम हो क्या कहाँ पे रही है। जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, सब कुछ वहां पे करके अपना निकल गया, हथियार वहां पे छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान का वो बनता था एज ए इस्लामी मुल्क कि हम अफगानिस्तान के साथ बात करें और उससे अपना एज ए, मैं आपको एक रीजन वो बता रहा हूँ फैक्ट, क्योंकि वो तो ज्यादा वो रीजन मानते हैं ना अफगानी, और आप भी एज ए पाकिस्तान इस्लामिक कल्चर है आपका, इस्लामिक रियासत आप बनाना चाहते थे, तो आपको अंग्रेज क्यों नहीं होने दिया किसी ने अफगानिस्तान के साथ? कभी आप इस बात पर सोचे हैं कि आप जब तालिबान गया, नहीं तालिबान आया, अमेरिका छोड़ा, तो आप अंग्रेज कैसे नहीं हो सके तालिबान के साथ? क्योंकि ये वो अमेरिका जो छोड़ के गया ना, वो आपका आपके आपसे कोई कल्चर उनका वो है ही नहीं, वो एक पॉलिटिकल वो है। वो आपको आपको आज से 3 या 4 साल बाद में पता चल जाएगा कि अफगानिस्तान क्या है और कौन उसके पीछे है, और पाकिस्तान पाकिस्तान क्या है, कौन के पीछे है। ये नूरा कुर्सी चल रही है। सभी बोलते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत अब तालिबान आ गए, अभी पता नहीं क्या होगा, कि वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। वो तालिबान भी सब अमेरिकन ही है मेरी नजर में। अगर कोई मेरे को प्रूफ कर देगा कि गलत हूं मैं, तो सर मैं आपकी एक्सेप्ट कर लूंगा। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है। मैं आपकी बात से नहीं, बेसिकली कंप्लीटली एग्री। मेजॉरिटी जो पाकिस्तान, अच्छा आप बोल रहे शाह जी। नहीं नहीं, यू गो फर्स्ट। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मेजॉरिटी जो मैंने जितना जो माइंडसेट पाकिस्तान में सुना है, देवर आई मीन दे थिंक दैट अफगान तालिबान एंड टीटीपी आर टू डिफरेंट एंटिटीज, यू नो, वही गुड तालिबान बैड तालिबान, दिस होल व्हेन यू से कि नहीं देयर ऑल द सेम, इट्स द सेम थिंग, वो तुमसे लड़ना शुरू कर देते हैं। नो 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 नो, टीटीपी, यू डोंट वांट टीटीपी टू कंट्रोल पाकिस्तान बट यू वांट तालिबान टू कंट्रोल अफगानिस्तान। आई मीन जो तुम्हें अपने लिए चाहिए वो तुम्हें उनके लिए नहीं चाहिए। दैट मीन्स दैट यू नेवर हैड गुड इंटेंशंस। अगर तुम्हारे गुड इंटेंशंस नहीं थे तो उसके बाद हालात खराब हो गए, तो व्हाई आर यू ब्लेमिंग द पुअर पीपल फॉर इट? अभी अगर तुम्हारे तालिबान अफगान गवर्नमेंट के साथ हालात खराब है, तुम्हारे अफगानियों का क्या कसूर है? उन लोगों ने तो शायद उन तालिबानों की शक्लें भी नहीं देखी होंगी कभी जिंदगी में। मैं इसमें मधुसा, फर्दर ये मैं बात अभी भी ऐड करना मैं इसके अंदर एक फर्दर बात ऐड करना चाह रहा था। आई एग्री with what Vivek Singh said as well, and quite rightly Medusa pointed out that both TTP and Taliban are kind of intertwined, नहीं सर, which means सॉरी सर, शाह जी, मैं टीटीपी का नाम नहीं लिया। वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो है क्या। चलो आप अब नहीं, कंटिन्यू करें सर, लेकिन सॉरी। लेकिन like Medusa basically pointed out, आपने नहीं लिया लेकिन Medusa ने लिया। I agree with that point कि there is not much differentiation between the two, they're intertwined। अगर आप इन regions के अंदर जाएं तो आपको ये local populace के अंदर से बातें पता लगती हैं। They're very very clear कि तारीख तालिबान या तालिबान जो हैं वो interchangeable हैं, they're the same people, they're supporters of the same in and out organization। ethnically उसके अंदर disparity हो सकती है कि कुछ और ethnicities के लोग ही हैं उसके अंदर, लेकिन give and take it's the same organization operated by the same group of people with influence and control from the same group। हैविंग सेड दैट, मैं आपकी इस बात से भी कंप्लीटली एग्री करता हूँ जिसकी बेस पे मैंने ये कंक्लूजन निकाला हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट लाइक यू पॉइंटेड आउट दैट ये जो तालिबान है ये अमेरिकन क्यों छोड़ के गए हैं, एंड अगेन इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, देयर इज समथिंग नोन एज द हिस्ट्री हेनरी किसिंजर फॉरेन पॉलिसी,
जिसको पॉलिसी ऑफ केओस भी बोला जाता है. I would like invite everyone to basically search that in their own convenient time and see what it is, and you can see that being implemented. Loads of basically organizations have already pointed that out even before it occurred. आपका जो Institute of Peace and Research है United States का, they basically spoke about that. There were reports before the withdrawal of Americans happened. और आपको अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से ये बात का बहुत क्लियरली पता लगता है. एक साइड के ऊपर चाइना है, एक साइड के ऊपर ईरान है, एक साइड के ऊपर पाकिस्तान वाज लीनिंग टुवर्ड्स चाइना टू अ सर्टेन एक्सटेंट. फिर आपकी 3 टैन कंट्रीज हैं which are under huge Russian influence on the other side. So this is a win-win situation for United States, and the Doha Agreement is the blueprint of that. हमने कई जगहों के ऊपर ये बात नोटिस की है कि शायद it is in cohesion. I agree with can you. I So, interrupt you? yeah, go ahead. ओके शाहजी सर, आप आर्टिकल या जो आप जो भी पढ़ते हैं सर, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, पर जो होता है ना कि लोकल एरिया लोकल लोगों के साथ आपने बात करनी है, उसको ऑब्जर्व करना है, वो आपको एक बहुत अच्छी या कुछ बुरी फीलिंग देता है. दिस डिपेंड ऑन विच पार्ट यू बिलोंग. तो सर मैं विवेक सिंह जी, तो फिर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ. I partly belong from an area called Swat, and Medusa Rouge here is from Waziristan. तो मेरा स्वात ख्याल है ओके कि लोकल एरिया ये हमारा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वक्त जी to जी a huge extent, or we're talking about what is occurring in our ancestral streets and roads. तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि हमारी बात की तो और वैलिडेशन होती है, और आपसे हम डिसएग्री कर ही नहीं रहे. दिस इज ऑल एम्पावर्ड and in support. Doha Agreement is a blueprint of Taliban allegiance and support to the United States. It's nothing more than शाहजी मैं कुछ एक थोड़ा सा अपना वो एक कमेंट कर दूं. आफ्टर यू कैन एग्री और नॉट एग्री. सर जो थॉट्स ऑफ ह्यूमन चेंज होता है ना, वो सिचुएशन के साथ चेंज होता है. टुडे यू आर अ रिच मैन, आफ्टर दैट यू लॉस योर कंपनी एंड एवरीथिंग, तो आप थोड़ा तो आपका बिहेवियर अलग होगा. तो फिर आप एक यू आर टुडे यू आर ह्यूमन, आफ्टर टुमारो यू बिकम अ क्रिमिनल. तो सर जो आज की सिचुएशन है, जो मैंने उस पे बात की है कि मैं जिन लोगों के साथ मिल रहा हूँ, जिनसे मैंने बात की है, मैं उनसे उनसे वो कर रहा हूँ. शायद आप मुझसे ज्यादा लोगों के साथ बात कर सकें. सेम लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप लैंग्वेज को ऊपर डिपेंड करें. लैंग्वेज मीनिंग भी आप जो लोग जो वहां से सर्वाइव करके आए हैं, जो वहां से कुछ चीजें देख के आए हैं, वहां पे हैं, तो दोनों का आपको बार बार बात करके उन दोनों की जो थिंकिंग तो है विक उसको सिंह जी, ऑब्जर्व करके फिर आपसे मैं बात आपकी करेंगे. बात से बिल्कुल भी मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो आप कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ उसके अंदर डिफरेंस क्या है. जरा आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या समझ आई है कि जहाँ पे हमारी डिसएग्रीमेंट है. सर यू आर फ्रॉम स्वात, एग्जैक्टली. नहीं, तो आप मुझे पॉइंट Okay, ऑफ कंटेंशन बताएं ना. guys, we have like 2 minutes. We have like 2 minutes, so we need to go towards final comments. हाँ, और उस तो फाइनल Anisha, कमेंट से पहले Wi- विल wi- आस्क wi- Rupesh, yeah. लेकिन हाँ, लेकिन okay. विक सिंह जी, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि आपकी और मेरी डिसएग्रीमेंट कहाँ पे है. मैंने तो आपके पॉइंट को थोड़ा सा ज्यादा एलैबोरेट जी जी किया. तो दूसरी बात यह है कि आपने लोगों से बात की होगी, जरूर की होगी, जो उन एरियाज को बिलोंग करते हैं. लेकिन हम खुद भी उन्हीं एरियाज को बिलोंग करते हैं. कुछ लोग जी पार्टली, सर, कुछ ये मेरा पॉइंट था लोग कि आप उन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी थिंकिंग और होगी. आप यू बिलोंग टू दैट एरिया, यू हैव अ डिफरेंट फीलिंग. आपकी फीलिंग और होगी. कोई एक आदमी थोड़ा उस एरिया के बारे में एक 90% अच्छी कमेंट करके 1% गलत बात करेगा, तो आप बोलेंगे नहीं यार, इसके मैं थोड़ा वो हूँ. सर ये एक ह्यूमन
मेंटालिटी है कि आप एरिया के ऊपर जब जाएंगे ना, तो सर आपको फिर बहुत कुछ देना पड़ेगा। तो एरिया नहीं, अब मैं पंजाब से हूँ, मैं इंडिया पंजाब से हूँ। जब मैं एरिया के ऊपर जाऊंगा तो मैं आपको इतना डिफेंड करके दूंगा कि आप उसको वो कर नहीं सकते। तो सर मेरा सब यही आर्गुमेंट था। आप कंटिन्यू करें, अगर आपको मेरे को कुछ वो लगा तो आप बताएं। एरिया के ऊपर नहीं जाना, हमने नहीं, सब कुछ हिस्ट्री बुरा नहीं देखनी है, था। हिस्ट्री एंड फ्यूचर, I सॉरी हिस्ट्री understand एंड that. प्रेजेंट। It's all good. With the history you have feelings, nothing else. Yeah, that's fine. I agree with that. We'll just move to Rupesh, और Rupesh के बाद we'll take final comments and just go for the close. Rupesh जी कैसे हैं आप? ठीक था? Yeah, I'm doing well. Actually, I want to make some points. We have to go to history to see where that problem starts. First, I want to just talk about some enmity between the Khalsa Darbar and Pashtuns. I have met something, and they have some bitterness. The Pakistan has been playing a really dangerous game. Since they have been milking Afghans during the Afghan war, invasion by the Soviet Union, and thereafter. And I was reading the United States embassy letter on that they have paid a lot of money. So they will, or it might be a perception that they have taken refugees as they have been milking them. And the other point is that there is a big narco terror link, and as far as I have read, that they do have some Afghan connection, and that's not wrong totally. I don't want to say that everybody is doing that, but there is a significant number of people who are cultivating opium in Afghanistan, and they are bringing, and there are golden crescent area. So narco terrorism is also a big problem. And the third is that Afghans are becoming more stronger, and they are pushing back. You must take into consideration that they have never accepted the Durand line. So if you are throwing somebody from Khyber Pakhtunkhwa, which was northwest frontier province, they say it is my home. How can you kick me out from my home? I mean, they have relationships. So that is also one of the problem. And the thing is that Pakistan army has to take a lot of casualties. I have seen during the last few months. So TTP is going stronger, and they want to enforce their own Sharia law and those kind of things. So this expulsion of Afghan refugees is nothing but a displacement of anger. You cannot fight with the Afghan TTP and others. So go after a poor Afghan refugee who live. And if there are documented, I do understand that people have a lot of problems. They have paper, and sometimes people are lazy, procrastination. They don't care. Okay, whatever, what happens, everything is okay. That kind of attitude, I do understand. So was Pakistani administration not aware of that problem? I don't think so. They were well aware that there are undocumented people living inside the border of Pakistan from Afghanistan. So the thing is, why at this point of time they are trying to expel these refugees? There might be 2 points. First, Pakistan is under economic duress. They don't have money, and their foreign exchange reserves are going down, and they think that you need a scapegoat. Okay, because this Afghan is taking away dollar to Afghanistan and all those things, and they are taking our jobs, and they are here, they are stressed on our economy, those kind of. And the other is that they think that the TTP might have some relationship, which is possible. I don't say. If I am thinking strategically, it is quite possible that they might have some link in the Pakistan refugee population. They might have. So that is not a problem. So they are punishing everybody. They are doing collective punishment. Even every poor person has been punished. So I think Pakistan army, because I don't blame every Pakistani. I have seen Pakistan, but they are playing a dirty game. And these Afghan refugees are just getting oppressed by these games. So that is the main thing. Why now? Because TTP is stronger, and they are hitting at various points, and they are having problems. So that was my opinion. Sorry. Your opinion is totally wrong. TTP is sorry, मैं कोई ऐड कर सकता अपनी बात? शाह जी, let him complete Vic जी, और फिर उसके बाद आप respond कर लीजिए, और साथ ही सर अपना final. रिस्पॉन्स पता कब आता है?
कि जब आदमी कुछ नहीं नहीं, रुपेश को पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए फिक्सिंग जी, एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड, फिर आप जवाब दीजिएगा। रुपेश ओके कैन ओके कैरी ऑन, so कंप्लीट uh, कर so लेने दो ना। the problem of durant line was from the very beginning, and Afghans were not accepting being, and so these kinds of social unrest is taking it, so they want a big big solution for you. They want to fire a cannon to kill a fly. So that is the problem, and these things will compound. It will create a lot of problem. At least there will be a lot of ethnic strife. So I think even if since you have kept him for so long, you should treat them kindly, because these people are your neighbors and they are from the same area. For example, the part of India which I सॉरी belong सॉरी to, सॉरी a man. लोकेश भाई दैट्स इनफ इनफ सॉरी यार उसको वाई कंप्लीट तो वाई करने दो ना, ही इज क्लोजिंग नहीं एंड नहीं देन सॉरी यू कैन रिस्पॉन्ड। सर मेरे को पता क्या तकलीफ पता क्या है कि जब कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो सर हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं वाई टीटीपी शुड बी treated like how can you say why टीटीपी should be like calm why not why उसको सॉफ्ट ट्रीट करें क्यों लाइक व्हाट, बेग योर पार्डन, क्यों आई करें डिडंट अंडरस्टैंड। मुझे भी आई नहीं एक्सेप्ट समझ आया। भी आप पाकिस्तान को क्यों बोल रहे हैं कि टीडीपी को थोड़ा सा सॉफ्ट वो दें क्यों लोकेश भाई वाई Sir, if you don't understand English, try to learn. I have never said that you have to be lenient on TTP, go hard यार on terrorists. पर्सनल I एक am दूसरे के 100% right. साथ ना I am हो तो talking बेहतर about Afghan refugees who are poor people and who have come, and you have accepted it. If you wanted to keep them separate from the general population, then you should have made arrangement for that, but you have not made, so it is your fault. Now they have and now you are doing them. If you find a terrorist, shoot him on the crossroad. I don't care. I have no sympathy Okay, for look, any Rupesh, kind of. Rupesh, I Rupesh, would cut you off. Shaji, एक point. एक सेकंड Shadi, आप sorry, मैं निकाल, just wait a second please, hold on please. So Rupesh, I agree with what when you say the main point in terms of the conversation of the entire history. I don't know how that was connected, but you must have somehow connected it, and I understand indirectly it's connected. But your main point is agreeable that basically the Afghan refugees who reside in Pakistan or have been living here should not be made a scapegoat for something which they are not involved in. In terms of those people stating that those are mostly conductors of terrorism and oppression, they are a weak group, hence they were refugees. They are normal civilians who happen to have families here. And that is a very important, imperative concluding point which you've actually made, and that is what I'm going to take out of your entire conversation and bring it to a close. That is something majority of Pakistanis and Pakistani government and Pakistani people need to keep into consideration, that these are now their own people. They have been here for at least 30 to 40 years. The majority of these people were born here. These are normal civilians. These are people whose lifestyle and opinions do not match the Taliban, hence, they moved in the first place. So, that should be on human rights level also be considered. And what kind of reception they will get if they are sent there in alien land to them, where most of them have never been or never lived. How are they going to survive? What is going to happen to their property? All these questions are very, very important, and they need to be answered. They need to be kept into consideration. And hence, I would also take this as your final comments. If you have any final comments further to make, Rupesh, please go ahead, and then we'll move to Ali Shabir Bhai, and then to Sid or anyone else who has like any closing comments, so we can close the room for today, the stream for today. So Rupesh, is there anything I, else you'd like to say? I just make a final statement that Pakistani government should not punish
poor Afghan refugees who have been living there for such a long time for the acts of some, terrorists and other. You go, you focus on your law enforcement and check. Don't go with a, a hammer to kill a fly and you will break the flower pot. You don't act like that. It is not the way of a responsible state. Since I personally believe Pakistan has been responsible for a lot of problems in Afghanistan. I do believe. And but for the case of the people who are poor, who have been making a living there, or who might not able to be survive, or they will live in penury, you can't, oppress people like that. If you are want to just move them away, do it in a proper way. Like where are you standing or what you are doing. Don't just push them off like that. They are not cattle, they are human beings. I just want to say that. Thank you, sir. Thank you very much, Ali Shabir. Do you have anything to say, like your final conclusion, your point of view? जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम शाह जी आपने, मधुसा ने, फुरकान, आप सब ने ये अरेंज किया है और मुझे आपने क्लोजिंग रिमार्क्स पे ले रहे हैं, शुक्रिया। देखें शाह जी, जैसे ये जो रुपीस साहब आए हैं, इनको बड़ा दुख हो रहा है कि हैमर के साथ वो लग गया, वो लग गया। तो इस हमाम में हम सब नंगे हैं, ठीक है जी। अगर इतना ही ये दुख हो रहा है तो वो मुदस्सर की माँ जो है हमारी, जो हमारी वो बेगम है जहाँ गुजरात वाली, वो जो हमारे मुसलमान बहन भाई जो हमारे जिनका साथ रिश्ता है, उनके साथ क्या-क्या हो रहा है। आज इतने वट पड़ रहे हैं इनको कि जी वहाँ बिल्किस बेगम के साथ क्या हो रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है, वो भी काश कह देते। टिट फॉर टैट की बात नहीं हो रही, बात ये है कि सब नंगे हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर लानत-मलानत की बात होने लग पड़ी है, तो एक बंदे का इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ज़रूर नाम लेना है और जिस तरह ये नाम लिया, इससे बढ़ के एक लानती इंसान का नाम लेने लगा। नाम इस्लामिक नाम है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है, उसको मैं चाहता हूँ ताकि क्योंकि मेरा काम है कि आप लोगों को चैलेंज करके जाऊँ। तो आप अब्दुर्रहमान वो जो उसका नाम था, वो जो 1800 कुछ में था, ये अफ़गानिस्तान का जिसने हज़ारा कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी को जिसने ज़ुल्म की दास्तानें बनाई। सेठ साहब सीधे हो जाएँ आप बड़े टेक लगा के बैठे हुए हैं, पढ़ें आप हिस्ट्री कि उसने किस-किस डिज़ाइन के ज़ुल्म किए हैं, किस-किस तरह के ज़ुल्म इन्वेंट किए हैं, किस-किस तरह वो केव्स में डाल के बंदे को कुओं में डाल के बंदों के ऊपर टॉर्चर करना, वो करना, हमें सब याद है। वैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, वो मतलब सोफ़े पे चुप करके और आराम सुकून से ठंड प्रोग्राम लग रहा है, लेकिन हमें भूला कुछ नहीं है। इसलिए जब ज़ुल्म की बात होगी अ आखिर पे मैं गुज़ारिश ये करने लगा हूँ कि सारी की सारी मुबारकबाद और कांग्रेचुलेशंस और आई एम श्योर मैं एज़ ए बड़ा भाई मदूसा और शाह जी और फुरकान आप पे प्राउड ऑफ हूँ कि आप ये बार्ड्स बना रहे हो, क्या कहते हैं, बार आप इतना ऊँचा कर रहे हैं। हमें अपना कलेक्टिवली बार इतना ऊपर कर लेना चाहिए और यहीं पे मैं रोकूँगा कि कोई इमिग्रेंट यहाँ से चल के वहाँ जा रहा है, उसका दिल टूटने लगा है, हम इतना बड़ा बाड़ बना दें, ताकि कल को कोई भी दुनिया में कहीं हमारी बच्चों की आने वालों की तरबियत हो जाए, भांजियों की तरबियत हो जाए, आपकी तरबियत हो जाए कि जी ज़ुल्म नहीं होने देना। तो जहाँ-जहाँ ज़ालिम है, छितर हमने पकड़ा हुआ है, ज़ालिम के आगे हमने खड़े हुए हैं और ज़ालिम की पिटाई कर देनी है, चाहे वो यूपी में हो, गुजरात में हो, पाकिस्तान, बलूचिस्तान में हो या अफ़गानिस्तान में हो। ये बार जब बड़ा होगा ना, तो ख़ैर मुझे फिर उम्मीद है कि हम आगे निकल जाएँगे। शुक्रिया मतूसा शाह जी, मैं आपने टाइम भी दिया, अगर कोई रीबट है, किसी ने नहीं पूछना है नहीं, तो अली पूछिए। भाई, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा रुपेश भाई को। जब आप बात कर रहे थे सिटीजन अमेंडमेंट लॉ को सपोर्ट जब इंडिया करता है, जहाँ पे असम और दूसरे मुसलमानों को अपनी नेशनैलिटी साबित करनी पड़ रही है, दैट इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग राइट नाउ। वो भी तो ये कहते हैं बांग्लादेश से आए थे, तो पता नहीं किस किस को क्या क्या साबित करना पड़ेगा इस पूरे देखें, सिचुएशन। मैंने आपको अर्ज़ कर दी है रुपेश साहब, इस हमाम में सब नंगे हैं। बात ये है बिल्कुल, कि आई एग्री विद। शाह जी साहब ने, मतूसा ने, ये फरहान साहब, कुरैशी साहब ने ये बनाया है, तो इसमें बार ही ऊँचा कर दें बस। बस यहाँ बात खत्म होगी कि जिसके ऊपर ज़ुल्म होगा, निशाना भी होगा। हमने तो वो उसकी रूह को रोल दिया ना, अब्दुर्रहमान की, जो अफ़गानी था, जिसने बेड़ा गर्क किया है हमारे वो मतलब सारे मज़लूम बहन भाइयों का। हमने तो उसकी कब्रों को, उसकी आने वाली नस्लों तक नहीं उसे छोड़ना।
यहाँ सोफे पे बैठ के उसकी हमने एक एक कर लानत मलानत भेज दी है। और भी ले आए लिस्ट में, पंजाबियों को भी ले आए जो जालिम है, और दूसरे हैं, सबको टका के हम जो है वो लानत मलानत करते हैं। हमारा तो वैसे भी शाह पंजाबियों जी को काम है थोड़ी हम लानत छोड़ मलानत का। सकते हैं, क्या पंजाबियों ख्याल है को शाह भी जी? हम लेके आएंगे, गुजरातियों को भी लाएंगे, छोड़े, यहूदियों को भी लाएंगे, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को भी लाएंगे। क्या क्या था, बस राजपूतों को छोड़ देंगे शली, बड़ी उनका नहीं मेहरबानी। हम वो कुछ देखें, सकते, वो उनसे राजपूत मोहब्बत है। देखें, वो कौम नहीं है, वो भगवान है इस इलाके के। हाँ सही है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आई एग्री विद यू। थैंक यू अली भाई अली फॉर भाई वैसे कमिंग बड़ी एंड दहशत है आपकी, आपने मुझे बैठने का, आपने मुझे यार, कहा कि लेकिन सीधा होके आज तो बैठो, हम कैमरा ही काम रुपेश करना भाई बंद के कर साथ दिया था भी मेरा। कंप्लीटली एग्री कर गए, नहीं, जो उनका फाइनल पॉइंट था कि उनको नहीं, क्या आप कर रहे हैं, एक मैं पॉइंट तो पे नहीं कर आई रहा। टोटली डिसएग्री। मैं पहले भी नहीं बोलने की कोशिश कर कंक्लूजन रहा पे हो। था। वन, ठीक है, कंक्लूजन पे समवॉट किया, बट एक जो इन्होंने जिसकी बेस पे ये आर्गुमेंट बना रहे थे, और और ये मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट भी होगी, कि इंटीग्रेट क्यों किया उन्हें नॉर्मल लोगों में, पाकिस्तान के, उन्हें अलग क्यों नहीं रखा? दैट्स नॉट हाउ जब आपके यहाँ रेफ्यूजीज आते हैं, आपके यहाँ इमिग्रेशन होती है, वेस्ट में आप देखें, आप उन्हें अलग नहीं रखते। देयर इज अ पॉलिसी ऑफ ये ट्रू इंटीग्रेशन नहीं है फरहान उनकी। भाई, मैं यार आपको यार एक, शाहजी ठीक है, ठीक है, यूरोप में मुझे पता है, ठीक है, आई एग्री टू दैट एक्सटेंट के देयर आर नहीं नहीं पाकिस्तान में कैंप। ट्रू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर वेरी वेल इंटीग्रेटेड। दिस इज अ लाई एंड अ स्टीरियोटाइप दैट दे आर नॉट। Yeah, that's what I'm saying, because we integrated them, but he was saying that इन्हें integrate initially किया ही क्यों? I'm saying कि that is what should like होना चाहिए, ठीक है? दैट्स व्हाट आप इंटीग्रेट करते हो जब कोई आता है किसी और मुल्क से माइग्रेट करके किसी और मुल्क में। तो इंटीग्रेट नहीं करोगे तो आप उन्हें सिक्लूड करके रखोगे। व्हाट्स द पॉइंट देन? मुझे नहीं समझ आया कि आप ये क्या कह रहे हैं। अभी पॉलिसी ये क्यों आई है पाकिस्तान में? आई हैव नो क्लू। मुझे अभी भी पूरी ये ऑलमोस्ट 2 hours 16 minutes की डिस्कशन रही है, मुझे अभी तक ये पॉइंट समझ नहीं आया कि राइट नाउ इस पॉइंट इन टाइम में ये पॉलिसी क्यों आई है। और फिर शाहजी ने भी मेंशन किया कि मैं ये एम्फसाइज कर रहा हूँ, ये इंटरिम गवर्नमेंट क्यों लेके आई है? पिछली गवर्नमेंट ने कोशिश की, शाहजी हैज अ पॉइंट कि ये उनकी तरह फेल होगी, नहीं होगी, इट इज अगेन इन द फ्यूचर, बट ये गवर्नमेंट लेके आई है। पहले कोई भी गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकी थी। तो why the interim government? Why this point in time? Why expelling them right now? I have still no clue. इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा? मेरा ख्याल है कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। वो इधर रहते, कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बट उनके बच्चे आराम से रहते, वो उनके घर बार आराम से रहते, जो इंटीग्रेशन इधर के इलाके के लोगों के साथ शादियां करके, दे हैव फैमिलीज हियर, क्रॉस बॉर्डर जो उनकी कम्युनिटीज हैं, वो आराम से सुकून से रह सकते थे इन इलाकों में, वो डिस्टर्ब होंगी, उनकी डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होंगी। जो अभी विंटर्स हैं अफगानिस्तान में, वो जाके सरवाइव कैसे करेंगे? देयर आर किड्स, देयर आर women, देयर आर elderly जिनको आप एक्सपेल कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि क्यों हो रहा है वो तो मुझे समझ नहीं आया, बट जो हो रहा है आई टोटली डिसएग्री एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी ड्रैकोनियन थिंग व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नो इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान विच आई फोरसी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी इस चीज से, नो, ठीक है। अफगानिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा आई थिंक वो विद टाइम हमें पता लगेगा, बट पाकिस्तान पे कोई इसका बेनिफिशियल इम्पैक्ट नहीं आएगा इस पॉलिसी का, बट जो 1.7 मिलियन लोगों के साथ होगा दैट इज वेरी ड्रैकोनियन आई वुड से। जी थैंक यू शाहजी। जी शाह जी, मुझे एक वैसे लाइन, भी दूसरा कुरैशी साहब की एक लाइन जी जी प्लीज। देखिए कुरैशी साहब, आपको मैं एक जुमला देने लगा हूँ, ये आप मेरे से बारो कर लें।
क्योंकि आपने इतनी लंबी बात की तो उसको मैं एक सेंटेंस में बताता हूँ, और वो ये फिर वही डायलॉग हो जाएगा, मधुसा तुम्हारे लिए क्लब हाउस की जुबान में मैं बात करने लगा हूँ। डॉक्टर साहब, आप मतलब जब मुसलमान छाले मार रहे हैं एलन मस्क की बातों के ऊपर कि उसने ये कह दिया है कि जब हमास के साथ ऐसा, जब इसराइल हमास के साथ ऐसा कर रहा है तो हमास की रिक्रूटमेंट बढ़ेगी, ज्यादा होगी, तो तब पाकिस्तानी यहाँ भी ये कहे ना कि जिस हालत में जिस तरीके से अफगानियों को भेज रहे हैं वहां, तो अफगानियों के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंट है वो ज्यादा रिक्रूट होंगे। तो ये जुमला आपको गिफ्ट दिया मैंने। ठीक है जी। थैंक यू अली भाई। एंड आई थिंक ये पॉइंट तो सोचेंगे नहीं, लेकिन हमें एज अ कंट्री, एज पीपल ऑफ पाकिस्तान, वी हैव टू थिंक वन थिंग कि भाई ये डिसीजन लिया क्यों है। और वो मुझे मेरी समझ से बाहर है। इवन आफ्टर इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं पैनल पे, बड़ी डिस्कशन रही है 2-2.5 घंटे की, मुझे नहीं समझ आया कि why the current government made दिस पॉलिसी, या ये इम्प्लीमेंट क्यों की गई। मुझे अभी तक वो चीज समझ नहीं आई। और आई एग्री कि वो जो जा रहे हैं वो शायद आपके अगेंस्ट खड़े हो जाए इन द फ्यूचर, बट ये जो पॉलिसी है ये क्यों इम्प्लीमेंट हो रही है, आई हैव नो क्लू राइट नाउ, even after discussing it at length for 2.5 hours. Thank you very much. फुरकान भाई, I would Okay, like to guys. get my closing statement. Sid, तुम अपना final वो दे दो, and please, keep it short. Thank you. Yeah, I'll try to. मैं जो बात रिपीटेडली करना चाह रहा था कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत रही है कि जिस वक्त पानी सर से ऊपर गुजर जाता है ना, उस वक्त वो एक ड्रास्टिक मेजर लेते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो उनसे हैं 5-6 साल बाद हमें फेस करने पड़ते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज सिनेरियोज। किस वजह से की गई थी, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा था, इट वाज बिकॉज ऑफ डॉलर्स। जिस टाइम पे ये पॉलिसी इनेक्ट हुई है उस टाइम पे डॉलर्स की कंपैरिजन जो था वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया हुआ था, 300-350 से ऊपर जा रहा था। देयर वाज अ ड्रास्टिक प्रॉब्लम एंड द ब्यूरोक्रेसी आइडेंटिफाइड इट एज कि डॉलर्स फिजिकली अफगानिस्तान में मूव हो रहे हैं, जो कि इम्पैक्ट वहाँ पे नज़र आ रहा था। अफगानी जो सी करेंसी है वो डॉलर्स के साथ साथ मैच कर रही थी। एट वन पॉइंट इट वाज इंटरचेंजेबल। दैट वाज अ ड्रास्टिक मेजर। गलत तरीके से इन लोगों ने हैंडल किया। क्यों किया? मेरा ख्याल जो सबसे ज्यादा एम्फोसिस आता है वो इस चीज के ऊपर, मैं नहीं समझता कि तालिबान गवर्नमेंट के साथ कोई ये प्रॉब्लम थी या शो ऑफ करना या फिर प्रेशर बिल्डिंग। जो ब्यूरोक्रेसी ने ये डिसाइड किया है मेरे अंदाजे के मुताबिक, मोस्ट ऑफ इट हैड टू डू विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्या ये सही सोल्यूशन था? नहीं। उन्होंने ये सोल्यूशन क्यों लिया? सिंपल माइंडसेट कि भाई जो लोग वो कहते हैं कि वो जो के साथ गंदम भी जो सी वो पीसी जाती है, उन्होंने वो वाली पॉलिसी इनेक्ट की कि भाई जिन लोगों ने छुपाया हुआ वो हमें मिल नहीं रहे हैं, इन्हीं के बीच में होंगे ना, सारों को सफाई करो। इसके करोसिव इफेक्ट्स पाकिस्तान पे इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इन टर्म्स ऑफ करोसिव रिमार्क्स फ्रॉम द अफगान पब्लिक आएंगे। इनको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो मेरे जहन में पर्पस आता है कि उन लोगों ने ये क्यों किया, ब्यूरोक्रेसी ने, because this is an interim government, majority of the decisions that could have been made were probably from the bureaucracy। ये रीजनिंग मेरे समझ में आती है कि इस वजह से उन लोगों ने ये स्टेप लिया होगा। Was that the right step? No. Would it have been managed in a much better way? लेकिन मेरे जहन में जो जवाब आता है वो ये आता है। बाकी अली भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इज गोइंग टू हैव फ्यूचर। और हमारी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी वो कहते हैं ना अपने मसलों से भिड़ना चाहती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट particularly work in the favor of Pakistan as a state, as a government or as a country. Yes, thank you. Shaji, final statement, please.
It's very simple. I think we need to look beyond stereotypes. We need to make sure that these people are basically looked after and unjustly not sent back. It's a human issue, human rights issue. स्पेशली हम जितनी इमोशनल बातें इस्लामिक उम्मा के लिए करते हैं, जो लोग आपके पास आए, आपको उन्होंने अपना समझा, इस कंट्री को अपना घर बनाया, यहाँ पे उन्होंने बिजनेस क्रिएट किया, इंटीग्रेट किया, rather than accepting them, why just throw them out when they don't want to leave in the first place? आगे ही पाकिस्तान के अंदर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ढूंढना मुश्किल है आज के टाइम में, जो बन गए हैं और वो भी आउट ऑफ चॉइस बन गए हैं. You need to respect them. You need to show them that they are welcome. And that's all what my opinion on that is. Many people might disagree. Thank you. Acha, I guess it's my turn now. I'm just going to say that as a Pashtun, and I actually feel really bad for them because they're my people, and technically KP उन्हीं का इलाका है. So throwing them out just because you want to go on a petty move with the Afghan government, that is just sad. I mean, अगर आप अपने पड़ोसी के मुसलमान के ना हो सके तो अपने फलस्तीनियों के लिए क्या करना है? I mean, what is with this fake sympathy के फलस्तीनियों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है? तुम्हारे बॉर्डर पे अफगानियों के साथ क्या हो रहा है? औरतें, बच्चे इस सर्दी में ट्रकों में बैठे हुए हैं, डिटेंशन सेंटर में बैठे हुए हैं. So it's a very inhumane move, but sadly for the so-called Muslim Ummah, we only support causes that are more beneficial to us politically. We will go support the Kashmiris, we will go support the Palestini, we will go support Burma, Rohingya Muslims, but we will be silent, most of us. And you know what makes me more sad is when I see Pashtun people actually telling Afghans to go back because they don't even realize that Afghan is a synonym of Pashtun. Afghan and Pashtun are the same thing. Maybe nation state बनने के बाद ये एक identity बन गई, but they're the same thing. But they're so brainwashed, they don't realize that they're doing this to their own people. And I think जहाँ पर policy की बात है, Pakistan keep making these clumsy mistakes. Policy की तो कोई बात ही ना करे. And this thing will, वो जो Ali Bhai ने कहा ना कि this thing will come back at us, it will bite us in the ass, and we will, जो generally जो अफगानियों को पाकिस्तान अच्छा लगता था, because I know some of the Afghan and they love Pakistan, they will start hating Pakistan as well. And nobody should be surprised अगर तालिबान पर खुला जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट आ जाए. फिर कोई गिला ना करे कि तालिबान हमारे साथ ये कर रहा है, तालिबान हमारे साथ वो कर रहा है, फिर खुला आएगा वो. So that is all I have to say, and this is my last statement. बाकी सबका हो गया, and whoever is listening, thank you for listening, thank you for watching, and I hope you can make up your mind after listening to all this. Subscribe the channel on YouTube and press the bell button so that you can get regular update where we hold debates on different topics, politics, social issues, sometime maybe fun stuff and religious stuff. So yeah, that's about it. Thank you for speaking, everyone. Thank you for coming, Sid, Ali Shabir, and Furqan Bhai, Shaji, and of course myself. And thank you everyone for listening. I'm going to end this stream. Thank you. Da Hafiz and goodbye.